Great. सर ये टॉपिक मुझे लगता है काफी हॉट फेवरेट टॉपिक है। क्या है, आई टेल यू, आई एम अ सीए टर्न लॉयर, आई होप सो यू आर अवेयर। तो राइट सर। जो मेरे को स्टडी करके समझ में आया ना, आई टेल यू, आई विल बी शेयरिंग इवन दो इन माय प्रेजेंटेशन लॉट विद ऑल अदर्स, राइट सर। that post GST, this is something which is, I should say, I would exactly would like to say that it's a kind of running blood in the राइट vessels of the state government, so that they can make it out कि आज तक जिन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे थे और वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, because this is not something gift of GST. This is राइट something going on from at design. Now the point is only this: they are being taken out from their holes and I should say hanged like anything. So we will discuss on that in राइट detail, that how GST has helped us in this all this, and let's see. I hope so. अच्छा, सूरत में भी हाँ बहुत सारे ऐसे cases हैं. I know, I personally राइट know. सर। Yes. तो I've been जैसे ही हमने ये सेमिनार वेबिनार लॉन्च किया ना, हमने टू ओपन की विद इन अ डे सर 230 रजिस्ट्रेशन हमको मिल गए। ऐसा है great. पूरे टॉपिक है, मैं तो ये कहूंगा सर। Great. तो वी आर स्टार्टिंग सर, राइट? Yeah, please. A very good evening, respected members. Our today's speaker, Advocate CA Rahul Ji Lakhwani, my co-coordinator CA Johnny Jain, and all my dear friends attending this webinar. I, CA Arun Naran, welcome you all on behalf of Surat branch of WRC of ICAI. Before we move further, I request CA Johnny Jain to please introduce our today's speaker, Rahul Ji Lakhwani. Over to you, Johnny Bhai. Good evening. Good evening, Rahul Bhai. Good evening, my evening, sir. committee colleague, CA Arun Narang, and all my fellow colleagues. आज बहुत ही खास दिन है और मेरे ख्याल से काफी स्ट्रेटेजिकली ये टॉपिक ब्रांच ने अलोकेट किया है। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है और महावीर भगवान की भी आज जैनों का पर्व है, जिसमें कहते हैं कि सब कुछ अहिंसा से और सत्य की राह पे हमें चलना चाहिए। So the topic is very relevant. I take this opportunity to welcome CA Advocate Rahul Lakhwani ji. He is the senior partner in Chir Amrit Legal LLP, looking majorly after indirect tax work. He has experience of appearing before Honorable Supreme Court, Honorable High Court of Rajasthan, and quasi-judicial appellate authorities, such that and tax boards, and various educating authorities. Successfully, he has represented Rajasthan Police, Rajasthan Civil Aviation Corporation, Krisi Upaj Mandi, and other various PSUs. He is also engaged in advising a large number of corporate and multinational companies in respect to GST, service tax, excise, VAT, entry tax, and so on. He has experience of imparting training to tax officers and employees of corporate, including officers of RBI on handshake with GST, revenue audit team of CAG officers of Rajasthan on GST, JC, AC, DC rank officials of Rajasthan GST department, training of different corporate of GST. He has also presented paper and delivered talks in several national and regional conferences, seminars, and workshops organized by region branches of ICI. With this, I warmly welcome our today's speaker, Rahul Lakhwani ji, and I hand over the mic and dice to you, sir. Thank you so much, Johnny ji. So, Arun, I guess we can start. Great. Yes, sir. Great. Fine. So, very good evening to all of you, all those who are listening online and also through YouTube or other channels, or later on will be listening to the video, because nowadays that is how it happens. You have the recorded thing available. So, I, Rahul Lakhwani, I am a CA and lawyer, and I'm representing Mr. Amit Legal LP, a law firm. We also have an office in Surat. So, I keep on traveling to Surat, but last
4 to 5 months I have not been able to travel. We have an office in Vesu, so again the I should say new area of Surat, open wide roads and very different from the city area. So we have an office in Surat, Vesu, so I keep on traveling for that. And the topic which I have been taking today is with respect to GST, issue of fake invoicing and others provision. I would be definitely taking you through the various, I should say, provisions also, and later on how department carry out its proceedings. And Arun, English will do mix of that, yeah. Hindi चलेगा English सर, mix chalega na? Yeah. both will do Fine. sir. Yeah, Yeah. because I want to connect to. I can't do go Gujarati, fine, but yes, still I can go somewhat with Hindi so that I can connect well with my audience. Yeah. यस, तो अगर हम बात करें, अच्छा सबको गणेश चतुर्थी की सबसे पहले बधाई, क्योंकि यस गणेश जी का आज दिन है, टू ऑल द पर्सन्स हु आर लिसनिंग. सो कमिंग टू माय टॉपिक, जीएसटी 2017 में लॉन्च हुआ और उसके बाद यू कुड हैव फाउंड कि देयर आर मेनी these kind of media highlights which are coming up. I just take you through some of the media highlights. What are they? That you have effectively government raiding the DGGI, again a body which is called an intelligence wing of the GST, Director General of GST Intelligence. They have carried out various kind of actions wherein they have been arresting people on account of some involvement in the GST. What sort of that involvement I will discuss in detail, but these are certain media highlights. Now, one question which comes to mind of any person, that is this the gift of GST? क्या GST आने के बाद ये चोरियां चालू हुई? So my clear cut answer to this will be no, a loud and clear no. Point is, because of GST now they are being unearthed, or I should say better, आज वो चोर जो कि पहले ये चोरी करते थे और छुपे हुए थे, वो GST के बाद आसानी से निकाले जा रहे हैं या ढूंढे जा रहे हैं. अब इसका रीजन क्या है, जरा उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे. जैसा हम सब समझते हैं, GST is a one nation one tax concept, and when we say one nation one tax concept, yes, we have a common law introduced to all the states and the central government, but more important is that we have a single platform. And when we have a single platform, what we understand in the form of goods and services network, where we all feed our data, it actually creates as a single platform for database. If any assessing officer wanted to have access to any client and any information of any registered dealer sitting across over his laptop, and wheresoever he is in the country, that the information, wheresoever the registered dealer is, the information can be accessed. I just tell you because I have been also working with some investigation matters. The जो investigation क्या होता है, जैसे GST इनको अगर अपन समझे, इट इज मोर ए सॉर्ट ऑफ ERP. क्या प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है डीलर्स के डेटा की. इंटरेक्शन कौन करता है? एक तरफ आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, मींस आई शुड से आइदर द टैक्स पे और द कंसल्टेंट जो डेटा फीडिंग का काम करते हैं, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स. अब डिपार्टमेंट ऑफिसर्स की भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आई शुड से एक्सेस राइट होते हैं, उनका अपना एक लॉगिन आईडी होता है. So just to give you an information, the officers who are in investigation, they have the access right of any registered dealer subject to some restrictions to access कि अगर एक डीलर ने X डेटा एंटर किया और दूसरे डीलर ने Y डेटा एंटर किया और Y डीलर की बुक्स में अगर किसी और डीलर का डेटा है तो उसकी भी एक्सेस करके देखी जा सके, और व्हाट सो दैट दे कैन फॉलो द चेन. नाउ अंडरस्टैंड, क्या ये पॉसिबल था जीएसटी के टाइम में, वैट के टाइम में? माय आंसर विल बी क्लियर कट नो. सबसे पहले एक तो हर स्टेट को अपना एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता था. वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया था कि नहीं था, दैट इज वन थिंग. और सेकंड, एक्साइज के केस में तो और डिफिकल्ट हो जाता था, जहां पे इफेक्टिवली वन पर्सन सिटिंग इन केरला एंड देन ही सप्लाइंग गुड्स टू अ डीलर विद द स्टेट ऑफ राजस्थान, कैन दैट इजीली वेरिफिकेशन कैन बी डन. पोर्टल पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख रही है लेकिन इजीली वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था. अब हुआ क्या? हुआ ये कि जीएसटी के अंदर एवरी स्टेट डेटा, every registered data is available on a single portal. So it helps in boost investigation matters to be carried out in a very easy manner. An officer by sitting at his, I should say, laptop figures, he can take out any data. That is one. दूसरा अगर मैं बात करूं, देखिए क्या है, there is always some restriction with respect to power to be granted to a particular officer. अगर अपन जीएसटी से पहले की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टेट लॉज के अंदर
अरेस्ट का प्रोविजन नहीं था, और कई स्टेट में प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन भी थे, बट दैट वाज नॉट दैट इजी कि आप पहले अरेस्ट करोगे। वहां पे भी यही था कि पहले आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करोगे, डिमांड रेज करोगे, देन यू कैन गो ऑन प्रोसिक्यूशन। Whereas that was not the position with respect to central excise and service tax. सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स में जो ऑफिसर्स थे, और बेटर टू से कस्टम्स आल्सो, जो ऑफिसर्स थे, दे वर एम्पावर्ड वेल बिफोर जीएसटी टू कैरी आउट एन अरेस्ट प्रोसीजर। नाउ आप और मैं दोनों समझते हैं, चाहे तो अपन थोड़ा सा एक पुरानी रिजाइम का रिकैप भी कर लेते हैं, कि एक्साइज के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डीलर्स कवर होते थे, सर्विस टैक्स के अंदर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स कवर होते थे। जो ट्रेडर था वो कभी भी सेंट्रल ऑफिसर्स, जिनके पास इन्वेस्टिगेशन का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, उनकी बेटर ट्रेनिंग हुई हो रखी थी, और मैं बोलूं जिनके पास बेटर इक्विपमेंट थे, या फिर लॉ ने भी उनको बेटर एम्पावर किया था, वो कभी ट्रेडर को नहीं छेड़ सकते थे। द पर्सन हु इज only and only involved in buying and selling in goods, he cannot be touched upon by the central officers, even though they were well equipped to understand indirect taxes or value added tax concept as given under excise law. तो होता क्या था, स्टेट ऑफिसर्स जिनके पास थोड़ा इंफ्रा की कमी होती थी, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि उनको लॉ ने भी एम्पावर नहीं कर रखा था, वो लोग कैरी आउट करते थे, मैं यूं बोलूंगा, टेकिंग केयर ऑफ द डीलर हु आर जस्ट डीलिंग इन गुड्स। लेकिन पोस्ट जीएसटी सेंटर के वो सारे ऑफिसर्स, डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, जो कि बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड होते हैं, या फिर मैं बोलूं दे आर मोर ट्रेन्ड, दे ऑल्सो हैव एन एक्सपोजर कि अरेस्ट प्रोविजन को कैसे यूज किया जाता है, दे ऑल्सो गेट पावर टू स्क्रूटनाइज द ट्रांजेक्शन ऑफ अ ट्रेडर which was earlier not available to them. And as soon as they got that area, I tell you, very aggressively they started to find out all those mouses who were hiding, taking garb of the VAT law which was in existence earlier. Because yes, there they were, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, जितने भी मैंने डिस्कशन आपको बताया, इसमें से कुछ केसेस पे मैंने काम भी किया है खुद, आई वाज रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज। तो जो मेरे को समझ में आया, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये सारी ट्रांजेक्शन्स वो हैं जो वैट से 2017 से कई साल पहले जब वैट आ चुका था तब से चली आ रही थी, बट बस ये सामने नहीं आती थी। सो द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड जीएसटी। आप और हम दोनों समझते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ द पोर्टल इश्यूज, many of my friends who practice, who do compliance work, suffers a lot. But I tell you, by that single ERP, effectively tax evasion can be curbed like anything and in a very easy manner. So with this background, let me start with certain provisions, or certain, I should say, basics. Then I will take you to the higher level, or better to say, the statutory provisions, and we will try to interpret that. Let me start with first one, that is arrest versus prosecution. Is there any difference between both of these terms? I would like all my audience to be interactive, not because yes, I can't have a live questions with you, question and answer, but when I'm putting something and pausing for something, I would want everyone to just have a introspection in their mind when I'm putting up in a question, and then relate to the answer which I'm giving. So the first one is there a difference between the term arrest versus prosecution? There is a very clear-cut difference as per the criminal jurisprudence. Now, what that difference is, let me explain you. What happens? मैं आज कहीं रास्ते पे जा रहा था, किसी ने एक आदमी को चाकू मारा, उसके बगल में पुलिस वाला खड़ा था, उसने फटाफट उस आदमी को पकड़ा जिसने उसे चाकू मारा, एंड ही डिटेन्ड हिमसेल्फ। बट क्या मैं बोलूं कि क्योंकि पुलिस वाले के सामने और मेरे सामने उसको चाकू मारा, whether this person can be prosecuted immediately? सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने मारा, उसमें एक सर्टेन साल, सॉरी आईपीसी में लिखा हुआ है कि किसी ने किसी को मारा तो इतने साल की सजा होगी, तो क्या इसका मतलब है कि इमीडिएटली सजा हो जाएगी? आंसर इज नो। पॉइंट इज द पुलिस ऑफिसर हैज गिवन राइट under the CRPC, that is Criminal Procedure Code, which is a procedure law for criminal matters, कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन कोई कमिट करने वाला है या कमिट कर रहा है, then he can arrest him, और कर चुका है, then he can arrest him. But that doesn't mean कि that person is going to be guilty. Arrest means detaining a person liberty and restricting his movement. Whereas prosecution is entirely different. Prosecution means that now you are going to give him an opportunity, a fair trial, if I say, to a person, and then finally decide with all, जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मेरा एविडेंस किया जाएगा और ये पूछा जाएगा ट्रायल कोर्ट में
कि क्या आपने इसको चाकू मारते हुए देखा, एंड आई एम अ पर्सन हु इज ऑन द स्पॉट गिविंग एन एविडेंस इन अ स्टेटमेंट सेइंग दैट यस मैंने उनको मारते हुए देखा, सो दैट मे लीड टू वन ऑफ द एविडेंस एंड फाइनली it may end up that person is being convicted and this prosecution may happen. So the difference between arrest and prosecution, if I say, arrest is a very interim stage where effectively on account of suspicion even a case can be carried out, whereas prosecution is finally conviction of a person because it has been gone through a fair process of trial before a judicial authority, and there later on it has been decided yes, he is guilty of that crime. Now my question or now my point to discuss with all of you is this, ये जो मैंने आपको इतने सारे मीडिया लाइमलाइट दिखाए, is this a arrest or is this a prosecution? To clarify each one of my listener, they are only prima facie arrest because not even a single prosecution has been completed under GST till now, because prosecution is a lengthier exercise, and to my understand with all limited infrastructure with judiciary who is going to trial GST cases, my experience is एक ट्रायल कंप्लीट करने के लिए नहीं नहीं करके इनको 5 से 7 साल लगेंगे. So what happened to the person during while? उसे अरेस्ट तो कर लिया गया है, he is behind the bars. The next thing which comes up is the bail. What is a bail? Bail is a right given to the court saying that if this person arrest has been made and prosecution is going to take time, release that person for a while. So that is a right and discretion available with the court. So that's a simple concept of criminal jurisprudence. I'm telling you why, because when you have to understand this concept, or during your practice time, if you find out certain this actions to be happening, is not to be taken something कि यार कोई आदमी अगर arrest हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो guilty है ही है. That is only a right which has been casted upon the officers that yes, if you are finding and you have a reason to believe, the term is very clearly given, reason to believe कि इस आदमी ने चोरी करी है, कौन से प्रोविजन में चोरी करी है वो भी अपन डिस्कस करेंगे. अगर करी है then you can detain that person and then you have to give him a fair trial of chance. That's how it goes on. So I have once given you a background about arrest versus prosecution. Let me move further. Now I am at certain statutory provisions. Now mind it, I'm not going to take you through, I'm not just going to take you through, I should say, provisions like ठीक है ऐसे पढ़िए. But what I want, I know it is very difficult for all of you who are practicing that go back and refer to the book word by word. It is always good that it should be given at the time when we are discussing. So as we have a time of 2 hours, so I'm going to utilize each and every minute in a manner that you can take some impression in your mind when you are back. So I'm taking you certain statutory provisions which I have reproduced in my slides. We will just have those words analysis so that you can understand the nuances of the provision, how they are given in the law. The first one is Article 21 of the Constitution of India, which says that no person shall be deprived of his right of personal liberty except according to the procedure specified by the law. So this article gives a right to a person who is a citizen of the country, saying that you cannot be deprived of your right of personal liberty. कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ होना जरूरी क्यों है? बिकॉज आर्टिकल 21 ये कहता है कि मैं आज भारत में कहीं पे भी घूमना चाहूं मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पुलिस ऑफिसर या फिर इस केसेस में जीएसटी ऑफिसर्स को राइट दिया अंडर जीएसटी लॉ कि अगर ऐसा प्रोसीजर हो तो आप उसकी लिबर्टी को कर्टेल कीजिए और उसको डिटेन कीजिए, विच वी अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल मैनर, उसे अरेस्ट कीजिए. नाउ इसलिए अपन को पढ़ना क्या जरूरी है? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में अपन को राइट दे रखा है, तो उस राइट को until unless specified by law it cannot be curtailed. So here we are with power to arrest, which is given under the law to specify that okay, when these conditions happens, you can curtail the constitutional right given to each one of us. Now let's have a reading of it, and we will try to dissect this along with section 132 in a manner so that we can understand it. Where the commissioner has reason to believe that a person has committed any offense specified in clause A, B, C, D of subsection 1 of section 132, which is punishable under clause 1 and 2 of subsection 2 of the said section, he may authorize by an officer of central tax to arrest such person. So that's a basic section, section 69, which provides power to arrest. I have highlighted one term intentionally, that is reason to believe. And it is more than reason to suspect. A lot number of jurisprudence is available. I will also, if time permits me, will discuss that when a person said that what are the tests to be identified that, okay,
The reason to believe exists because it cannot be merely a suspicion. So the courts have many times, I should say, set aside the proceedings being initiated. Either that is of, because this term is also used under income tax law, excise law, customs law, and also when we have to carry out any search exercise. This term is very important, that the commissioner should have a reason to believe. It should not be merely suspicion. So we will, if time permits, we will discuss that. But yes, this term is very important, and this is a prerequisite which has to be identified before carrying an exercise by a commissioner for arrest. Now, let me take you further on section 132, which talks about, which we are relating with section 69 for our understanding. Now, there are four sections A, B, C, D, or better to say four clauses of 132.1 A, B, C, D, which we are going to examine and understand with some examples. So, as I just mentioned earlier, that yes, I have been working with some of those cases where these clauses have been invoked. So, what I will try to do, I will try to share my experience of department invoking these cases in certain particular facts and circumstances, and then try to give you an understanding of these provision so that you can get a clarity tomorrow if you have to advise someone whether these clauses can be applicable or not. So you should be aware of that what this language means, what the language of this clause means. So the first one says 132.1a, whosoever commits any of the following offenses, namely A, supplies any goods or services or both without issue of any invoice in violation of the provision of this act or the rules made thereunder with the intent to evade tax. So that's the most simple language which is I have reproduced before you. Now, let me take some examples, and very interesting examples I'm going to quote for you. Most of the cities must have one grocery person, मतलब एक जो हम कहते हैं हमारे राजस्थान की देसी भाषा में अगर मैं बात करूँ, परचूने की दुकान या फिर एक वो जनरल मर्चेंट वाले की दुकान, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि भैया जो अपने घर में रोज खाने की चीजें आती हैं, चाहे दाल, रोटी, दाल, चावल, गेहूं, मैदा, ये सब चीजें बेचता है, मैगी के पैकेट, बिस्किट के पैकेट बेचता है। ये हर सिटी में 2-4 दुकानें बड़ी प्रोमिनेंट होंगी, बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, लेकिन उनका काउंटर इतना फास्ट मूविंग होता है, उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, ग्राहक आया तो क्या करते हैं, एक पर्ची सिस्टम रखते हैं उनके पास, कागज की नोटपैड बना हुआ होता है रफ पेजेस का, और वो कहता है कि अच्छा ठीक है ये माल चाहिए, ये बनाया और टोटल करके दे दिया। एंड व्हाट ही डज कि 1000 रुपए का माल आप लेंगे और 1000 रुपए का आपको कागज बना के देगा, आप पैसे देंगे, वो चल देगा। देयर इज नो सिस्टम ऑफ सेइंग जीएसटी इनवॉइसेस कमिंग इनटू पिक्चर। अच्छा, लेकिन उन लाला जी का टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो वो पता नहीं कितना होगा। नाउ माय क्वेश्चन व्हिच आई एम हिटिंग वेरी स्पेसिफिकली इन माइंड टू ऑल ऑफ यू, supply any goods or services or both without issue of any invoice in violation of the provision of this act or rules made thereunder with the intent to evade tax। जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, क्या वो एग्जांपल डायरेक्टली क्लॉज ए को हिट करता है, हाँ या ना? अभी आप में से कोई सोच रहा हो 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसको छोड़ दें, उसको मैं डिस्कस कराऊंगा, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। बट राइट नाउ यू हैव a clause, and if I want you to put up in your mind a question that the example which I just shared, whether this will hit under the, or I will say that grocery shop owner will get himself entangled in clause A or not. I just pause for a few seconds so that people can think upon. Finally, I will want to conclude it in a manner. The point is, होता क्या है, वो जो जनरल मर्चेंट या ग्रोसरी वाला है वो करेगा क्या, वो ये करेगा कि उसने परचेज तो करी है, he has purchased during whole of his month। जब उसने पूरे महीने परचेज करी है तो उसकी रिटर्न्स के अंदर परचेज का डेटा तो दिख रहा होगा। अब होता ये है कि उनके यहाँ एक अकाउंटेंट साहब होते हैं, उन अकाउंटेंट साहब का काम क्या होता है, या तो दिन के एंड में या हफ्ते के एंड में वो आते हैं और सेल के धड़ाधड़ बिल बनाते हैं। क्योंकि क्या है, जो स्टॉक आया हुआ है उसको स्टॉक को आउट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टॉक जो दुकान में रखा हुआ है, आज कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करने आ जाए तो वो स्टॉक उसके बुक से टैली नहीं होगा। क्यों टैली नहीं होगा? टैली इसलिए नहीं होगा क्योंकि परचेज तो हो गई थी और जो सेल करी थी उसके लिए अकाउंट्स के अंदर अभी एंट्री हुई नहीं, क्योंकि वो तो अकाउंटेंट साहब आके करेंगे। लेकिन हाँ, मोटा मोटा हिसाब वो जो कागज की पर्चियां वो लाला जी के पास रखी हुई होती है, उनको निकाल के अकॉर्डिंगली बिल बनाएगा। नाउ माय पॉइंट इज से, can I say that there is an intent to evade tax in this case? Now, point is,
ये जो लैंग्वेज ABCD की लिखी है, इसमें बहुत सारे मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दूंगा. अगर अपन बेयर रीडिंग करें तो ऐसा लगेगा कि कई सारे जेन्युइन केसेस भी इसके अंदर फॉल होते हैं. बट आई टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, I wanted to give you a jurisprudence of reading the provisions which are related to penalty and prosecution. एक बात समझिए, एक लॉ को आपको पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा कि आप उस लॉ का कौन सा सेक्शन या कौन सा प्रोविजन पढ़ रहे हैं. क्योंकि एक बार आप जब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक प्रोविजन विच हैज बीन रिटन टू आइडेंटिफाई द गिल्टी और क्रिमिनल पर्संस हु हैव टू पुट बिहाइंड बार्स, उनके लिए ये जो केस मैंने जस्ट आपके सामने रखा, दिस कैन नॉट बी कवर्ड for the reason because that person has never an intention to evade tax. What he is doing is just for the ease of business is carrying out a transaction in a particular manner, or better to say, he has a proper system of recording the books, but yes, he has just tweaked it a little bit. कायदे से देखिए, एक प्रोविजन का तो नॉन कंप्लाइंस मैं मानता हूँ लाला जी ने भी किया, वो ये है that the rule says that the invoice has to be issued immediately on supply of goods. He is not doing that. He has supplied the goods and he has not issued the invoice that is coming later on, but effectively जो accountant आता है वो बना तो उस दिन देता है. बट क्या ये इतना सीरियस हो सकता है कि इस लैंग्वेज के अंदर है? मेरा ये कहना है कि ये जो विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स है, दैट कैरीज अ प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर कल को कोई ये भी आके कहता है कि उन्होंने इस रूल का वॉल्यूशन किया, स्टिल यू कैन गो एंड पुट हम बिहाइंड फॉर सम रीजन ऑफ सेइंग दैट कि हाँ हमने एक रूल का नॉन वॉल्यूशन किया, आप वहां पे जाइए, बट यू कैन नॉट इन्वोक दीज प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस. तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये प्रोविजंस आए किस लिए? लेट मी टेक यू एक्चुअल केसेस जहां पे सर्च के दौरान एक डायरी मिलती है. क्योंकि लाला जी कच्चे का हिसाब पक्के का हिसाब कितना अच्छा रखते हैं ये तो भगवान मालिक है, लेकिन कच्चे का हिसाब वो पक्के के हिसाब से 4 गुना और पक्के तरीके से और अच्छे तरीके से मेंटेन करता है. इसका आंसर इतना सा है कि जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा आपके डेटर्स बढ़ेंगे, और डेटर्स कौन से? आउट ऑफ द बुक्स वाले. और वो आउट ऑफ द बुक्स वाले डेटर्स का अगर ध्यान रखना है तो कहीं तो कागज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि याददाश्त से तो सब याद नहीं रह सकता. और यही इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, या यही सर्च के दौरान ढूंढा जाता है कि क्या कोई कागज ऐसा प्रेमाइसिस पे मिलता है जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके, या फिर कैसी कोई डायरी मिलती है जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि इस आदमी ने गुड सप्लाई की. और उसके बाद कराया जाता है उस डायरी का स्टेटमेंट. किससे? जिन लाला जी के प्रेमाइसिस से वो डायरी मिली, और उनसे पूछा जाता है कि लाला जी ये बताइए, ये डायरी आपकी प्रेमाइसिस से मिली, इसमें जो ये गुजराती में लिखा हुआ है, मराठी में लिखा हुआ है, या फिर कॉमा लगा लगा के लिखा हुआ है, इनके बारे में ये समझाइए, ये ट्रांजेक्शंस है क्या? या फिर कालू राम और श्याम और राम जो भी नाम लिखे हुए हैं इनके बारे में डिटेल दीजिए. क्योंकि लाला जी को वो पक्के का वो कच्चे का हिसाब तो ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा, वरना उन लोगों से वसूली कैसे करेंगे? और जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो एक सेक्शन 70 के स्टेटमेंट के अंदर ये बताते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा था, एंड दैट इफेक्टिवली लीड्स टू इन्वोकेशन ऑफ सेक्शन 132(1)(a), which says that the person has supplied the goods or services without issue of any invoice in violation of the provision of this act made tender with the intent to evade tax. क्योंकि उनकी इंटेंट बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने वो जो कच्ची किताब मेंटेन करी थी वो इसलिए मेंटेन करी थी क्योंकि उनको सरकार को जीएसटी जमा नहीं कराना. So the most simplest example of invoking provision A is the cases where the goods are supplied in violation of the provision of this act and without issuance of an invoice. So I have highlighted this undisclosed sales, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाती है. और कई बार अगर ये ट्रांजेक्शन देखें तो बायर के प्रेमाइसिस से भी कई बार मिलती है. जैसे कि अगर किसी बायर के प्रेमाइसिस पे गए, जो कि छोटा सेलर है, बड़ा होलसेलर नहीं है, लेकिन वो खरीदता बड़े होलसेलर से, उस छोटे सेलर के पास ट्रांजेक्शन मिलती, बायर के पास ट्रांजेक्शन मिलती कि मैंने इस फला फला होलसेलर से खरीदा है. अब this also gives them a right that yes, when a purchaser has purchased, so the seller must have sold those goods in violation of 132(1)(a), and let's invoke it and try to invoke the arrest provision in that case. So this is the most simplest or easy to understand way of tax evasion. But I'm not here for this. I'm here for more interesting thing, which is also have been given highlight to my topic, issuing fake invoices by making bogus firm. Again, I tell you, I started, the first case which I argued in this matter is in September 2017. Again, unfortunately, one chartered accountant was involved in the state of Rajasthan in this.
Finally, she has got bail from Supreme Court. The status is that. But just to tell you, it requires a lot of brain, a lot of planning, a lot of understanding of the law as well as procedure thing before carrying out, I should say, theft of बी एंड सी. क्योंकि जब मैंने उस ट्रांजिशन को समझा तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार दिमाग तो बहुत लगा है, इतनी आसानी से तो ये ट्रांजिशन नहीं बन सकती. बिकॉज आई वुड हैव बीन स्पेंट एटलीस्ट अ वीक ऑन मी फाइंडिंग आउट ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजिशन. मेरे को डाइजेस्ट करने में, उनका फ्लो समझने में एक पूरा हफ्ता लगा. And then I was able to understand one of the sharpest brain can only do it. And I tell you, economic offenses जितने भी होते हैं ना, उसमें one of the sharpest brain यूज होते हैं, क्योंकि बिना उनके ये काम नहीं हो सकता. चूहे बिल्ली की लड़ाई में चूहे में बहुत दिमाग होता है, ये अनडाउटेड है. चलिए, let me come on to the provisions which I want to discuss with all of you. 132(1)(b. Now I just first have a reading of for all of you so that you can get a glimpse of it, and then I will try to again explain with certain examples. Again, these are not examples, but yes, my experience of handling those cases. Issuers, again I read it for you. 132(1) says, whosoever commits any of the following offenses, namely, I'm at B, issues any invoice or bill without supply of such goods or services or both, in violation of the provision of this act made thereunder, leading to wrongful availment or utilization of tax credit or refunds of tax. Now, in the first case, what was happening? Invoice was not issued, but the goods have moved. In this case, what is happening? The invoice have been issued, but without, I should say, moving of goods or without supply of goods. So that is the difference between A and B. And I also would like to read C here, because B and C goes hand in hand. C says, avails input tax credit using such invoice or bill as mentioned in clause B. Fine. पढ़ते ही ऐसा लगता है कुछ फेक इनवॉइसिंग की बात हो रही है कि बिल दे देते हैं और माल नहीं देते हैं. ठीक है, बट इज अगेन आई टेल यू दैट्स नॉट दैट इजी. आई विल एक्सप्लेन यू with 3 different set of cases which I have been part of that trial, or I should say bail procedure, and what I've been able to understand, I will share my experience with you. So let me first take you through how this exercise is carried out. So there are certain pointers. So let me explain these pointers in an easy manner to you. देखिए क्या रहता है, अपन सब समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. बेटर टू से केवाईसी. मैं हूँ मास्टरमाइंड, ठीक है, इस एक रैकेट को चलाता हूँ. जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, आई एम अ पर्सन हु रन्स अ नेटवर्क एंड आई वांटेड टू अर्न बाय यूजिंग सब मेथोडोलॉजी. तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक अरुण एज एन एग्जांपल. मैं अरुण के पास गया, या अरुण किसी मोबाइल शॉप पे गया और उसने वहां पे ले जाके इफेक्टिवली अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट दे रखे थे. और आई शुड से कि अरुण को जरूरत पड़ती है किसी कंसल्टेंसी एजेंसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, और उनको कोई नौकरी चाहिए. तो आई टेल यू, नॉर्मली ऐसे ही लोगों के डॉक्यूमेंट उठाते हैं जो से वॉचमैन का काम करते हैं, या फिर यूं मैं बोलूँ कहीं पे उनको पियोन की नौकरी चाहिए होती है. तो कंसल्टेंसी एजेंसी एक ऐसा बहुत इजी सोर्स है जहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वहां पे उस आदमी को जो वो बोलता है वो देना पड़ता है, क्योंकि नौकरी चाहिए. सो आई अप्रोच अरुण, एंड इट मे हैपन दैट आई ऑल्सो विद टेकिंग कॉन्फिडेंस ऑफ अरुण सेइंग दैट कि यार तुझे मैं 10,000 रुपये महीने दे दूंगा, तो बस इतना सा काम कर, तेरा आईडी मेरे को दे दे, तेरे नाम पे अपन एक फला बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, एंड अपन दोनों जहां जहां जरूरत होगी वहां थोड़े बहुत तेरे साइन ले लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. लगा अच्छा इतना सही काम है. मैंने कहा इतना सही काम है और 10,000 रुपये महीने में. It appears so that for a person who's in a profession might find it कि यार 10,000 रुपये के लिए कोई ऐसा काम कैसे करेगा, बट आई टेल यू द ग्राउंड रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट. 10,000 नहीं, ये काम 5,000 में भी मैंने होते हुए देखे हैं. मैंने आई हैव बीन एबल टू एक्सेस दैट डेटा. यार करना क्या है, अपना आधार ही तो देना. ठीक है, 5,000 रुपये मिल रहे हैं, दैट इज व्हाट द मेंटालिटी ऑफ द पर्संस हु दे हैव टेकन द डॉक्यूमेंट. तो ये करते क्या है, ये उन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अपना डॉक्यूमेंट दो, क्योंकि राहुल अपना नाम कहीं नहीं डालना चाहेगा. क्योंकि राहुल का नाम कहीं पे भी आ गया तो राहुल जी गए. तो राहुल जी को अपना नाम कहीं नहीं डालना है. वो अरुण, श्याम, जॉनी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर लोगों को इकट्ठा करेगा, और नहीं करके नॉर्मली मैंने देखा 20 से 25 फर्मे में लोग बनाते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन कराते हैं डिफरेंट बैंक अकाउंट में. अच्छी खासी मेहनत लगती है सर, इतनी आसानी से नहीं चलता रैकेट. मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ.
बिकॉज आई एम द किंग मेकर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो बहुत मेहनत करता हूँ मैं। 20 से 25 लोगों को मैंने पैसे दिए और उनसे ट्रांजेक्शन अरेंज कराई, बैंक अकाउंट कराया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया। एक प्रेमाइसिस पकड़नी थी तो एक प्रेमाइसिस भी पकड़ ली। अरुण को मैंने लालच ये दिया कि अरुण ऐसा कर यार, तेरे घर का एड्रेस भी दे दे और 20,000 रुपए उसके और ले लेना। चलो उसने कहा ठीक है यार, ये भी कर लो। Now, once that exercise of making 25 firms completed, now the next step starts. Next steps is this. I would like to do layering. And what is this layering? Let me explain you. मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नया नया अभी सीए बना होगा उसके ऑफिस में जाऊंगा, कहूंगा यार तेरे पास मैं 5 फर्मों की रिटर्न फाइलिंग का काम देना चाहता हूँ। 5 फर्मों की रिटर्न फाइलिंग का काम नए आदमी के पास है, बहुत बढ़िया है, आ जाओ। अच्छा, डेटा मैं दे जाऊंगा। अच्छा ठीक है। वो पांचों फर्म में से एक भी फर्म मेरे नाम पे नहीं है, बट स्टिल दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट डजंट गेट सस्पिशन, और इवन दो गेटिंग सस्पेक्टेड, स्टिल बिकॉज अ न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, a person who has just entered into a practice and he is getting 5 files, he might not look into beyond कि यार मेरे पास वो ओनर तो कभी भी नहीं है, ये राहुल जी डेटा लेके आ जाते हैं। he might think so but none of his business, he thinks so and then leave the part transition. I will connect this limb later on, but I am coming back to my study. तो मैंने उसको 5 फर्में दी, 5 फर्में दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी, और हो सकता है मैं सिटी बदलने की कोशिश करूं ताकि लेयरिंग मैं कर सकूं। एंड व्हाट इज लेयरिंग? इज जस्ट कि मैं सारे बास्केटिंग, सारे जो एग्स है वो एक बास्केट में नहीं रखूंगा ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेट करे तो उसको मेहनत करनी पड़े। तो मैंने ऐसे 5-7 अकाउंटेंट अलग अलग सिटीज में पकड़े गुजरात की, और उनको काम दिया कि मैं आपको मेल पे डेटा भेज दूंगा, आप डेटा तैयार कर दें। ठीक है। अच्छा, उसमें उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर देखो क्या है वो ओटीपी और ईमेल आईडी में मेरी बड़ी दिक्कत आती है, आप अपना ही दे देना। करते हैं हम लोग। अरुण, यस, अरुण हैज अ स्माइल, या सो, और होता है, कहते हैं कि आप रात भर कौन परेशान करेगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दे दिए जाते हैं किनके, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, और फिर काम चालू होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको जो मैं डेटा दूंगा वो डेटा चढ़ाना है, उसका तो काम ही यही है। आई स्टार्ट डूइंग अ लेयरिंग एक्यूमुलेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सरसाइज। अब मुझे एक बात बताइए, एक बार अभी वाला प्रोसेस को छोड़ेंगे, 2017 में चलेंगे, ठीक है। 2017 में जब जीएसटीआर 3B बढ़ी जाती तो जीएसटीआर 1 के तो अते पते ही नहीं थे, बहुत टाइम तक अते पते नहीं थे। तो क्या करते थे, जीएसटीआर 3B में आज भी यही होता है कि आपको अगर इनपुट का डेटा डालना हो तो कोई कागज चाहिए होता है क्या? अगर जो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर वो रिटर्न्स भरते हैं और नहीं भी भरते हैं तो वो उनसे पूछे जो रिटर्न्स भरते हैं कि जीएसटीआर 3B में इनपुट के लिए आपको एक भी कागज की जरूरत नहीं होती, आपको टर्नओवर की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ 3 बॉक्स में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी भरना होता है और वो आपकी ईसीएल को हिट कर देता है। सब मुझे क्या बताना है? मैंने कहा जॉनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनको मैंने 5 फाइलें पकड़ाई थी, मैंने मेल पे लिखा साहब ये तीनों अमाउंट तो भर देना। फिगर आती है 1 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। जॉनी जी क्या करना, बड़ा क्लाइंट होगा, भर दो आप, तो मैंने मेल पे दे दी। और फिर मैं उसको एक लिस्ट देता हूँ कि इन सारी फर्मों के नाम पे बिल फाड़ देना, या जीएसटीआर 1 भर देना, नहीं है तो जीएसटीआर 3B में टर्नओवर दिखा देना। बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, तब तो जीएसटीआर 1 भी नहीं थी, तब सिर्फ ये करना था टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट डालना था, और आउटपुट जो था वो इनपुट से एडजस्ट हो जाएगा, कैश का 1 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा और वो रिटर्न भर जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक का कार्यक्रम हो गया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसकी लेयरिंग करूँ, और लेयरिंग ऐसे करूँ कि 25 फर्में से पहली 5 फर्में जो है वो सबसे पहले इनपुट डालेंगी, फिर वो बिल बनाएंगी नेक्स्ट 5 के लिए, फिर वो 5 जो है वो नेक्स्ट बिल बनाएंगी, और मैं इनको राजस्थान, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको जो लोग मैं इकट्ठे करूँ पूरे गुजरात में अलग अलग जगह करूँ, ताकि इट कैन बी डू जिगजैग, ताकि कोई भी एक जगह इस चीज को ट्रेस करना इतना आसानी से नहीं कर पाए। अब देखिए इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट, फर्स्ट। सेकंड, मैंने इनवॉइस दिया विदाउट इवन हैविंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो जब अपन अभी वापस बी एंड सी पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट द एग्जाम्पल विच आई हैव एक्सप्लेन, उसमें बी और सी दोनों हिट होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे आखिरी में कलाकारी जो होती है वो मैं समझा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों के दिमाग में जब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा था कि यार ये राहुल कर क्या रहा है, ये मास्टरमाइंड कर क्या रहा है? कुछ ही नहीं, अपनी फर्मों में डेटा को इधर उधर घुमा रहा है। नाउ अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, एंड आई टेल यू might be very shocking also for you, for all those who have completed their GST audit. राहुल लखवानी जो मास्टरमाइंड है रैकेट का, वो क्या अपने लिए ट्रांजेक्शन कर रहा है? आंसर इज नो।
ये उन लोगों के लिए ट्रांजेक्शन कर रहा है जिन लोगों की आप ऑडिट करेंगे और जो व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन है जो कि फाइनली राहुल से बिल लेंगे। क्योंकि मैं एक बात समझाता हूँ आपको, ये जीएसटी का जो क्रेडिट का खेल है ये तभी है जब फाइनली लेवल पे कोई आदमी बैठा हुआ है जो धंधा करता है, धंधा मतलब बिजनेस करता है प्रॉपर वाला, और उसको अपनी अनडिस्क्लोज ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए राहुल लखवानी जैसे लोगों की जरूरत है, और वो आदमी की ऑडिट करते हो आप लोग और उस आदमी के रिटर्न भरते हो आप लोग। पॉइंट इतना सा है, जब इस सिस्टम को कुदेड़ा गया तो ये समझ में आया कि भाई ये कोई बेनिफिट बेनिफिट कोई राहुल लखवानी को थोड़ी मिलना है। ये तो क्या करेगा, जितना इनपुट मान लो मैंने 50 करोड़ का इनपुट डाला है तो उसका सिर्फ 2% या 5% मुझे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यही तो मेरी ट्रांजेक्शन है कि मैं अनडिस्क्लोज ट्रांजेक्शंस देखो, बेटर टू से अन इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसको सिस्टम में डालूं और फाइनली उस क्रेडिट को उस आदमी तक पहुंचाऊं जिसके पास जेन्युइन गुड्स है। एक एग्जांपल देता हूं, कपड़ा बना, कपड़े से गारमेंट बनेंगे, कपड़ा कच्चे में आया, माल आगे पक्के में जाएगा। कच्चे में क्यों आया? जिससे माल खरीदना है उसने कहा मैं तो कच्चे में ही दूंगा, लेना है तो लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक। या फिर मैं यूं बेटर बोलूं, मैंने तो दलाल से माल खरीदा, दलाल ने एक्स जगह से तो कपड़ा लेके दिया, वाई जगह का बिल पकड़ाया, तो ये वाई जगह का बिल तो देगा राहुल। या फिर जो सेठ जी हैं जो रेडीमेड गारमेंट का खुद काम करते हैं, उनके संग दिक्कत है माल तो मिल रहा है कच्चे में, वो बड़े अच्छे आदमी है, वो एक नंबर में ही धंधा करना चाहते हैं, वो आगे एक नंबर में ही माल दिखाना चाहते हैं क्योंकि स्टेट के बाहर भेजना है, पता है आगे बहुत लफड़ा होगा। लेकिन लोकली जो माल फैब्रिक खरीदना है, वो फैब्रिक आएगा तो किससे आएगा? वो एक ऐसे आदमी से आएगा जिसने कहा मैं बिल नहीं दूंगा, तो भाई बिल तो लाना पड़ेगा तभी तो आगे एक नंबर का काम होगा। तो आखिरी में वो सेठ जी नहीं चाहते हुए, अच्छे सेठ जी जो कि क्लाइंट है अपन लोगों के, लेकिन वो सेठ जी को भी 2 नंबर में काम करना पड़ता है। कई बार वो सेठ जी नहीं चाहते वो 2 नंबर में काम करते हैं क्योंकि उनको तो अपने परचेज को अगर बैक नहीं किया इनवॉइसेस से तो आगे सेल दिखा सकते हैं क्या? वो सिंपल अकाउंटिंग बोला। लेकिन माल जहां मिल रहा है वो तो कह रहा है भैया मैं तो कच्चे में दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है मतलब। या फिर उन सेठ जी को एक लालच होता है कि कच्चे का माल आता है बड़े सस्ते में, उसके बाद मैं मेरी अकाउंटिंग मेरे तरीके से करूंगा। एंड इसी चीज को, या फिर मैं बोलूँ इसी सेठ जी की मेंटेलिटी को सपोर्ट करने के लिए जो मैं बोलूँ राहुल लखवानी जैसे एजेंट तैयार होते हैं जो कि इन बिल्स को उनको पास ऑन करते हैं ताकि क्या हो सके, वो आगे बेच सके। सो द मास्टर माइंड इज प्लेइंग दैट रोल, ही इज मेकिंग दोज फर्म्स टू गिव a pump in the credit system. So what happens, they can take that credit and then they can cover their undisclosed transaction. So that is the business what I am doing. मैंने भले 50 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो, लेकिन होगा क्या, 50 करोड़ में से मेरा कमीशन सिर्फ 2% या 5% ही होगा। बिकॉज पूरा क्रेडिट अगर वो मुझे दे देगा, पूरे पेमेंट मुझे कर देगा, तो वो तो नॉर्मल बिल ही खरीद लेता। वो यहीं पे तो सारी कहानी है कि वो 50 करोड़ का जो इनपुट टैक्स है वो सिर्फ सर्टेन परसेंटेज मेरे पास आएगा और बाकी ट्रांजेक्शन को हम कैश में एक्सचेंज कर लेंगे। सो वंस गिवन दिस बैकग्राउंड, मैंने जो आपको ट्रांजेक्शन समझाई या जो एक आई शुड से जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया उसकी एक समरी आप लोगों के आगे रखी, इसके बाद अगर मैं आपको वापस बीएनसी पे लेके चलता हूँ, आर यू एबल टू फाइंड आउट कि मेरे केस में बीएनसी इन्वोक होते हैं कि नहीं? अब देखिए, एक था अरुण जिसके नाम से मैंने फर्में बनाई थी, एक हूं मैं जो अरुण को मैनिपुलेट और मैनेज करता हूं। दोनों में से गिल्टी ऑफ बीएनसी कौन होना चाहिए, अरुण या मैं? बिकॉज मैं तो ये कहूंगा अगर कल को उन्होंने मुझे पकड़ा, भाई मेरा रोल क्या है? या अच्छा यहाँ पे एक तीसरा आदमी और है, तीसरा आदमी वो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने इन रिटर्नों को भरा है, और बेटर टू से मैं यूँ बोलूँ कि उसके ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट है जिसके सिग्नेचर पे वो इनवॉइस बने हैं। क्योंकि क्या होता है ऐसे केस में, वो जो नया सीए था ना उसको क्या बोलता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार एक तो अकाउंटिंग में तुझे करनी है और साथ ही साथ ये इनवॉइसेस जो मैं बोलूंगा ना वो भी तू बना देना। वो कहता ठीक है साहब, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का काम है, विद इन माई स्कोप ऑफ वर्क, आई कैन डू इट। और वो अकाउंटेंट उस डॉक्यूमेंट को निकाल के उस पर, चाहे वो चिड़ी मारने का काम हो या कुछ भी हो, लेकिन वो बिल बुक जो है ना वो अकाउंटेंट सीए के ऑफिस में मिलती है क्योंकि वो वही मेंटेन होती है, ठीक है। Now, if we see BNC, whether Arun, in whose name the entities have been created, or the chartered accountant who is making those invoices, or I, who is guiding all of them, is going to be get accused. अभी तक इसका इंटरप्रिटेशन हो नहीं पाया है, ये पेंडिंग है। लेकिन दिक्कत ये होती है जब डिपार्टमेंट अपना इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करता है, वो थोड़ी सी वियर्ड लैंग्वेज है, अगर आप वापस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। अरुण माइट बी ऑल्सो बी अरेस्टेड,
I can definitely be arrested, and also the chartered accountant may come somewhat in problem. I will explain you how that chartered accountant is going to save his neck if something that sort happens. But yes, he is somewhat in trouble. अच्छा, थोड़ा सा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस तो मैं उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी मानता हूँ, बिकॉज यार 5 लोग जिनका तू फॉर्म मेंटेन कर रहा है उनको तूने आज तक देखा नहीं। दूसरा, तूने ये भी सोचा नहीं कि यार इतना करोड़ों का काम करता है और ये कुछ नहीं फोन पे ही काम कर लेता है, ये कहीं तो ऑफिस मेंटेन करता होगा, कहीं तो इसकी फैक्ट्री होगी, कहीं तो ये कुछ करता होगा। अपन ने यार सोचा अभी नई नई प्रैक्टिस आई है, ज्यादा पूछेंगे तो बगल वाला क्या करेगा, उससे कम रेट दे देगा, तो बेटर है लेट्स डू इट, और जिस रेट में मिल रहा है करो। मेरी रिक्वेस्ट है, all those professionals who are listening to me, all those senior who can guide their junior, be very cautious, at least dealing with these kind of persons who you find in first go are going to be suspicious. कई बार मेरे लेक्चर्स के बाद मेरे पास उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सनल फोन आते हैं, वो मुझसे एडवाइस लेते हैं कि हमने ये किया, आई ट्राई टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल, बट मैं उनको एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, यार सी अभी तो बाहर कैसे निकलेंगे वो एक बात है, बट कोशिश करो कि इमीडिएट बेसिस पे उनका काम छोड़ दो। जैसे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखे थे, और यहाँ तक तो मेरे कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा जहाँ सीएस के लिए आई वाज आर्ग्यूइंग, उन्होंने अपने परिवार वालों के नाम से भी फर्म बना के दे रखी थी, एंड दे इवन वेंट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे उन्होंने अपने जो नोन थे उनके एड्रेसेस के बेसिस पे भी अपने फर्म्स क्रिएट कर रखी थी, क्योंकि लालच ये मिलता था कि अच्छा आप ऐसे फर्म रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको 10 की जगह 30,000 मिल जाएंगे या 40,000 मिल जाएंगे। माइंड इट। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप डाल रहे हैं अपने आप को एज अ प्रोफेशनल डिग्री व्हाट वी हैव टेकन, एंड ऑल्सो आई शुड से बिकमिंग नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ दैट क्राइम। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में दो तरीके की चीजें चलती है, एक होता है क्राइम करने वाला, एक होता है क्राइम में सपोर्ट करने वाला। We also have under GST law A, B, C, D are the first 4 sections. Then there's a list going on. At the last, you will find that a person who acts or who helps out a person in carrying out this activity. So those crimes are minor in nature. 6 महीने का ही prosecution है, but ऐसे cases में वो आपके ऊपर इन्वोक क्यों नहीं हुए? I had a doubt. बिकॉज एक होता है चाकू देने वाला और एक होता है चाकू मारने वाला। चाकू देने वाले को अगर ये पता है कि चाकू मारने वाला क्या करने वाला है, सो बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू प्रूव योर गुड फेथ। नाउ वंस एक्सप्लेन यू वन सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ बी एंड सी, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल, डिस्काउंटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। ये दूसरे टाइप का क्राइम है, मतलब मैं बी और सी वाली लैंग्वेज में एक टाइप का एग्जांपल आपके संग डिस्कस किया, आई एम टेकिंग यू डिस्काउंटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, और ये क्या कहानी होती है। चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उस ग्रोसरी, उस परचूनी वाले के पास जो मैंने बोला था आपके शहर में है, और जिसका काम क्या है, उसका काम है बिल फाड़ना। बिल फाड़ना मतलब ये बोलूँ, सॉरी मैं बोलूँ कि जिसने जब माल बेचा तब तो उसने कैश में बेच दिया, अब उसको क्या करना है, महीने के एंड में राम शाम गीता सीता के नाम से बिल बनाने। वो क्यों बनाने? वो इसलिए बनाने क्योंकि उसको अपना स्टॉक जो है वो रिकंसाइल करना है, क्योंकि माल तो वो बेच चुका है कैश में, लेकिन आज भी वो डरता है क्योंकि उसको बिजनेस करना है। उसके सीए ने समझाया कि भैया माल अगर तेरे पास आया एक नंबर में, तो एक नंबर में उसका इनवॉइस भी सेल का बनना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट वी हैव बीन एक्सप्लेन्ड। उसके सीए ने उसको ये समझा रखा। वो क्या करेगा, एक नंबर में अगर माल आया है, माल तो 2 नंबर में बिक गया, लेकिन अब उसको स्टॉक मेंटेन करना है, तो उसको मैं यूं बोलूंगा बिल बनाने पड़ेंगे विच आर ऑफ द रिकॉर्ड्स। अब जब उसको बिल बनाने पड़ेंगे तो वो किस तरीके से बनाता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन राहुल लखवानी मास्टरमाइंड वो क्या करता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो यही काम करते हैं, जिनको आखिरी महीने के एंड में अपने बिल बनाने हैं। मैं उनके पास जाके बोलता हूँ कि सर आप बिल बनाओगे XYZ के नाम पे बनाओगे, आप XYZ के नाम पे बिल बताओ, मैं बताता हूँ आप उन एंटिटीज के नाम पे बिल बना दो। तो क्या होगा, वो उस आदमी का जो सीए वो जब बिल बनाएगा तो वो इस तरीके से बनाएगा कि he is going to write name of my entities in his GSTR1 and in his GSTR and in my GSTR2 है, तो my मतलब मेरी नहीं, जो मैंने अरुण के नाम से या XYZ के नाम से बना रखी थी, उनके GSTR2 के अंदर वो डेटा रिफ्लेक्ट होना चालू होगा। अब देखिए हुआ क्या, वो जो मैगी का बिल था, ठीक है, क्योंकि परचेज उसने नेस्ले से करी थी, नेस्ले से उसने 20 रुपए का जो मैगी का पैकेट जिसकी एमआरपी है वो उसने से 15 रुपए पे परचेज करी थी, और 10% टैक्स पकड़ते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसने 1.5% उस पर टैक्स दिया था और 16.5 रुपए की उसको मैगी पड़ी थी। 1.5 रुपए तो उसकी एसेट में चला गया, 15 रुपए उसकी कॉस्ट का पार्ट बन गया। काउंटर पे आया, उसने बेचा, तो उसने कहा कि साहब अगर बिल नहीं लोगे तो मैं आपको यही माल 19 का दे दूंगा, वरना 20 रुपए एमआरपी है। वो भी राजी, उसने कहा 19 रुपए में ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, उसका सेल हो गई, 19 रुपए में माल चला गया।
अब उसके पास 1.5 रुपए की एक असेट रह गई, अगर मैं अकाउंटेंट की भाषा में समझाऊं, 1.5 रुपए की उसके पास असेट रह गई। अब उसका दिमाग चलता है इस 1.5 रुपए की असेट को कैसे कैश में कन्वर्ट करें। वहीं पे रोल आता है ये मास्टरमाइंड का। वो उसके पास जाता है और कहता है कि साहब आपके पास परचेज दे रखी है, आपको मैं एंटिटी दे रहा हूँ XYZ PQ1। अच्छा होता क्या है, यहाँ पे मैगी के क्रेडिट को मैं मार्बल के क्रेडिट में बदलूंगा। देखिएगा ब्यूटी क्या है, जब अपन अपनी GSTR 1 भरते हैं तो अपन जितनी भी डिटेल्स देते हैं उसके अंदर आप GSTR 1 और 2A के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो इफेक्टिवली 2A के अंदर आपको कभी भी ये नहीं दिखेगा कि नेचर ऑफ गुड्स क्या परचेज कर रहे हैं। अच्छा ये एक चीज है, बट मैं तो कहता हूँ वो तो उसकी परवाही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि भैया आप तो अपनी GSTR 1 में मैं जो डिटेल्स दे रहा हूँ वो चढ़ा देना और देन इट कैन गो ऑन, या फिर XYZ के नाम पे आप माल बना देना एक बार, फिर मैं देख लूंगा। सेठ जी तो कहते हैं भैया मैं तो मैगी का बिल आया था, मैगी का बिल बना दूंगा। वो मैगी का बिल एक बार चला जाता है टू अ डीलर हु इज डीलिंग इन मार्बल। वो इनपुट लेता है उस मैगी के बिल की और आगे बनाता है मार्बल का बिल, क्योंकि उसे तो लेजिटिमेट इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए जो कि बैकडोर, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। वो कहते हैं कि यार ये टैली जरूर होना चाहिए कि बिल आए जाए, वरना क्या होगा, हम जो पहले वाला काम कर रहे थे वहां तो बिल्कुल ही यूं मैं बोलूंगा अंधे तरीके से काम कर रहे थे, जहाँ पे कोई बैकडअप डॉक्यूमेंट था, जितनी इच्छा थी उतना GSTR 3 में क्रेडिट डाला। लेकिन इसी का थोड़ा सा बेटर और मॉडिफाइड क्राइम करने का तरीका ये है कि आप उन लोगों से बिल लो जिन्होंने 2 नंबर में तो अपना माल बेच दिया, लेकिन उनके पास इनपुट रखा है और अब उनको क्या करना है, उस माल को खत्म करना है। सो यू टेक दैट क्रेडिट इन योर बुक्स एंड देन ट्रांसफर अकॉर्डिंगली एट डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, क्योंकि ओरिजिन हो गया, आपके पास एक बेस आ गया क्रेडिट करने का। अच्छा इसमें उन सेठ जी का क्या फायदा हुआ, सेठ जी माल बेचेंगे 20 का, 20 रुपए उनके पास, 20 में से 19.5 या 19.40 या 19.60 डिपेंडिंग अपॉन अपनी अंडरस्टैंडिंग सेठ जी के पास कैश पहुंच जाएगा। और होगा क्या, सेठ जी ने जो अपना 1.5 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसके पेटे 60 रुपए 60 पैसे वसूल कर लिए। सो दिस इज हाउ दे डू द ब्यूटी, दैट माल भी बिक गया, पैसे भी आ गए एंड दे आर फाइनली इन अ विन विन सिचुएशन बोथ ऑफ द पर्सन्स, क्योंकि सेठ जी को तो बिल बनाना था, अपना स्टॉक कंप्लीट करना था। So that is what I have been able to observe. The second type of crime which is happening a lot, where the people just because they have sold goods to someone else and they later on make bill to someone else. अब होता क्या है, मैंने आपको ये जो दोनों एग्जाम्पल दिखाए, ये जब तक कोई पर्सन अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं है उसको समझने में इतनी आसानी से नहीं आते, या फिर मैं बोलूँ जो GST पोर्टल को नहीं समझता उसको बड़े आसानी से आते नहीं है। I, being a CA turned lawyer, enjoyed that privilege when I was understanding or I was taking a brief from my client when they were behind the bars. मैं उनसे जेल में जाके जब इंटरेक्ट करता, मुझे कई घंटे कई दिनों तक जाना पड़ता, बिकॉज एक एक घंटे की मुलाकात में मुझे उनसे समझना पड़ता था ट्रांजेक्शन कैसे हुई। बट यही ट्रांजेक्शन अगर आप जज जो कोर्ट में बैठे हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आई टेल यू, even though they are economic offense court, dedicated courts, but it is too difficult to explain and appraise them कि ये ट्रांजेक्शन में उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या था, किसी और का रोल क्या था। प्राइम वैसे उनके हिसाब से सब गिल्टी है, और सीए का नाम लेते तो उनको लगता है यही चुप है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आई ट्राई टू से दैट आई एम आल्सो सीए एंड लॉयर, यू कांट पुट these kind of I should say accusation on me without understanding what my role is in the transaction. But I tell you I am finding too difficult because इन ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आपका बिजनेस एक्यूमेन होना जरूरी है, जीएसटी के बेसिक्स पता होने चाहिए, अकाउंट्स के बेसिक्स पता होने चाहिए, लॉ पता होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू रिलेट इट टू द क्रिमिनल साइड. I have also briefed to many senior advocates when we have to argue the matters in courts, high courts. तो होता क्या है, I being a CA enjoyed that privilege and I many times find out कि ये क्रिमिनल लॉयर तो समझ ही नहीं सकते जब तक उनके संग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का बंदा, because here I am telling you there's a lot of opportunity for all of you, because in many of these cases it's not only an advocate work, it always require a business acumen, accounts understanding, a GSTN understanding to brief the transaction to a person who can summarize it and then present it to the face. So here I'm just highlighting that yes, there's a good opportunity for all of you who are listening to me, that yes, in future times if required you might be presenting your matter to some advocates who might be appearing for your court. But yes, that's a very important requirement when we are dealing in this kind of matters. We need someone who account background and understanding. So there's a flow diagram, so you can later on have this to your understanding. I am coming on again one more set of examples which I have been able to find out where the transactions are carried out, and again from one of the live example. B और C का ही एक एग्जाम्पल है, देखिए चोरी कैसे होती है। क्या होता है, आप सबको पता होगा कि कई बार
बिजनेसेस को अपनी बैलेंस शीट को ब्यूटीफाई करना पड़ता है, या फिर मैं बेटर टर्म यूज करूं जो अब हम अकाउंटेंट समझेंगे, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्यों करनी पड़ती है? एक, अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपने फाइनेंशियल्स अच्छे रखेंगे तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा, वरना वो गिर जाएगा। रिसेशन आया, एक साल सेल थी 2000 करोड़ की, अगले साल सेल हो गई 1600 करोड़ की, पता है बैंक लिमिट्स में दिक्कत आएगी, मार्केट में शेयर के प्राइसेस कम होंगे, तो क्या करें यार, टर्नओवर बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो जो उनके सो कॉल्ड अकाउंटेंट्स जो कई सालों से उनका काम करते आ रहे थे, जिनको जीएसटी की कम नॉलेज थी, उन्होंने कहा साहब पहले भी करते थे अब भी करते हैं, और क्या करते हैं वो समझाता हूँ मैं। वो 6-7 एंटिटीज बनाते हैं, और 6-7 एंटिटीज बनाते हैं अपने नोन के नाम पे, या जिनके भी वो फर्जी आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। अब होता ये है, उनका इंटेंट चोरी करने का नहीं है, उनका इंटेंट है मेन एंटिटी के अंदर टर्नओवर बढ़ाने का। और टर्नओवर बढ़ने का मतलब ये है कि उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। बट जीएसटी क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट कॉस्ट है, वो उनको खर्च नहीं करनी। तो इसमें सॉल्यूशन होगा जीएसटी का, ना कि इनकम टैक्स का, जो मैं ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो इनकम टैक्स देने के लिए रेडी होते हैं, प्रॉफिट पे तो 30% देना है, दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने शेयर की वैल्यू बनी रही, बैंक की लिमिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन ये ट्रांजेक्शन करते हैं। अब ये क्या करते हैं, से एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये 6 एंटिटीज हैं, और एक्स हमारी लिस्टेड एंटिटी है। तो क्या होता है, सबसे पहले एक माल खरीदा जाता है जो एक्स एंटिटी खरीदती है, और प्रॉपर बिल विल देखिए सब अच्छे से खरीदेगी, से 2 करोड़ का माल खरीदा। अभी क्या करेंगे, इस 2 करोड़ के माल पे कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और वो बेचा वाई को। अब वाई एंटिटी के पास क्या होगा, एक्स एंटिटी के पास कुछ प्रॉफिट आया, वो वाई के पास गया। अब यही ट्रांजेक्शन वो कंटिन्यू करेंगे, वो बहुत मिनिमम मार्जिन पे, हो सकता है मार्जिन भी नहीं करें। वाई जेड को देगा, जेड पी को देगा, पी वापस एक्स को देगा, एक्स वापस बेचेगा, और ये कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन को घुमाएंगे। इससे फाइनली इतना होगा कि जितना चाहे उतना जीपी मेंटेन करो या नहीं भी मेंटेन करो या नहीं भी बढ़ाओ, लेकिन एक्स एंटिटी का टॉप लाइन बढ़ सकता है। दैट कैन बी वेरी वेल प्लान्ड। क्योंकि करना क्या है, अगर परचेज सेल सेम प्राइस पे कर रहे हो, तो एक तरफ परचेज बढ़ेगी, एक तरफ सेल पड़ेगी, हो सकता है जीपी मार्जिन थोड़ा कम हो जाए, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2000 करोड़ में से अगर आप 200 करोड़ की सेल जैसे दिखा दो, बिकॉज दैट विल इफेक्टिवली, हाँ साहब हमारी सेल कम हुई, या फिर कोई भी रीजन है, जीपी तो यू कैन एक्सप्लेन इट, बट आपने अपना टॉप लाइन मेंटेन कर लिया विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ एडिशनल जीएसटी, बिकॉज वो 6 एंटिटी के बीच में जब घूमेगा तो वो क्रेडिट ही पास ऑन होगा, और जो मेन एंटिटी है एक्स, उसका सिर्फ टर्नओवर बढ़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज। अब मैंने आपको जो सर्कुलर ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया, इससे हो ये रहा है कि क्लॉज बी and clause C is getting violated clearly. Just let me take you through again clause B and C. Clause B says, Arun, am I audible clear to you? Johnny? So I guess I'm clear. That's why I'm getting some chat messages also. I just wanted to get a confirmation just for the network issue. Yeah, great. Yes, it's audible. So I'm coming on clause B and C again. So when I just explained you this example regarding the fact that in with respect to a transaction where there is a circular trading, clause B and C gets attracted. A person may say that I have not, मैंने किसी भी तरीके की टैक्स चोरी नहीं करी है. This can be one of the point which he can argue, but effectively clause B and C are getting attracted and they have to make the payment of the taxes. This is what practically happens. The B and C gets attracted and the department say yes, there is no GST theft, but effectively you have not moved the goods, you have just moved the invoices from here and there, and this is attracting clause B and C in this particular case. So once given you example of B and C, now let me just take you through clause D now, because where we are as of now 5:56. So I have still an hour to discuss. Now, using tax collected, how this fraud happens. Let me take you to clause D. Now let's understand the language of clause D and what does this clause D says.
132(1) clause D. A person collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. I hope so you all are reading it and doing in the same manner I explained, that you have to analyze it in your mind when I am taking some pause. So I have taken some pause and I wanted each one of you to have a reading of this clause, and now I am going to put up one of the simplest example and want you to introspect in your mind. आप लोगों ने डी पढ़ा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक ऐसी बिजनेस एंटिटी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा सा प्लांट लगाया, कैपिटलाइजेशन किया, और मैं आई एम एंटिटी विच इज ऑलरेडी इन सर्टेन बिजनेस एंड आई हैव एडेड सम कैपिटलाइजेशन देयर. अब जो मैंने कैपिटलाइजेशन किया उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेट हो गया. उस अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैंने आने वाले 3 या 4 महीने में या 5 या 6 महीने में, बेटर टू से 6 मंथ्स में मैंने बहुत सारी सेल करी, और उस सेल को मैंने रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया. और क्यों रिफ्लेक्ट नहीं किया, मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास इतना सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा है, उसको अगर मैं रिटर्न में नहीं भी दिखाऊं तो करना क्या है, रिटर्न भर के आपस में सेट ऑफ ही तो करना है. व्हाई टू डू दैट, मैंने छोड़ दिया. एंड मेरे पहले 3 महीने का जो सेल थी उस पर लगने वाले टैक्स का जोड़ था 7 करोड़ रुपए. लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बनती, बट 7 करोड़ इज द अमाउंट विच आई हैव टू शो इन माई रिटर्न कि मेरी आउटवर्ड है, और मेरे 100 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट में से वो माइनस हो जाएगी और 93 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास आ जाएगा. बट फॉर सम गुड रीजंस मैंने वो फाइल नहीं करी. Now my question to all of you, whether clause D gets attracted for the example which I have shared just now or not. एक बार डी वापस पढ़ता हूँ आप सब लोगों के लिए. Collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. Now one person can say very clearly saying that रिटर्न नहीं भरी तो टैक्स पे नहीं हुआ, चलो जेल में. Can that be? Answer is clear cut no. Now why? See, again you have to be very cautious while you are reading the law chapter, or I should say better to understand that which part of the act you are reading. As I mentioned, we are reading penalty and prosecution chapter. 132(1) talks about initiating prosecution. The example which I just shared with you, whether that leads to a person collecting tax and not making payment of it 3 months from the date on which such payment becomes due, my answer is clear cut no. He has just deferred his method, or I should say he has just deferred the way of presentation. Because of it, he should not be charged to nature of crimes like prosecution. Now a question comes in your mind which should now a question comes in my mind to explain that when this clause D can be attracted. ऐसे कौन से केसेस हैं जब एक क्लॉज डी आ जाता है या फिर इसे डिपार्टमेंट इन्वोक कर सकता है. तो चलिए पहले उसे समझते हैं, तो आप शायद मेरे एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसको डिफरेंशिएट कर पाए. क्लॉज डी समझने के लिए चलिए कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं. कोचिंग क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट हैं, दिन में 8 या 9 बैचेस चलते हैं. 8 या 9 बैचेस में किसी में 150, किसी में 200, 1000 स्टूडेंट डेली आते हैं और महीने के एंड में फीस देके जाते हैं. मैं उस कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूँ और मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोल रखा है, देख भाई बच्चे आएंगे 1000, अटेंडेंस होगी 1000 की, बिल भी देना 1000 को, लेकिन जो बिल बुक है वो इस तरीके से बनेगी कि 1 से लेके 600 नंबर तक तो चलेंगे. उसके बाद जो 400 बच्चे आएंगे उनको वापस से कौन सा नंबर देना है, 201 से लेके 600 तक का. और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. मैंने ये किया कि मैंने अमाउंट कलेक्ट किया 1000 स्टूडेंट से, लेकिन और 1000 स्टूडेंट्स को इन्वॉइसेस भी दिए, क्योंकि वो कंज्यूमर है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लेंगे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है. वो करेंगे क्या, वो करेंगे ये कि इनवॉइस को ले जाके घर पे रखेंगे, हाँ यार हमने 1,18,000 का पेमेंट किया फीस का. लेकिन मैंने ये किया, मैंने इनवॉइसेस सिर्फ 600 जनों के बनाए, बाकी 400 को जो डॉक्यूमेंट दिए
उनको मैंने मेरे रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं बनाया. They have not been made a part of my record, and in this way I have collected a tax from 400 students at the rate of 18%. मतलब 18,000 मल्टीप्लाई बाय 400 सीधा गया मेरी पॉकेट में. Now again, this is not a theoretical example. I hope so many of you are aware that we in Rajasthan have a city named Kota. This is again a case which I am fighting out from service tax time with respect to some institution out there. Second point, एक और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. अगेन अ लाइव एग्जांपल व्हिच आई हैव सीन. I hope so you all Gujaratis are very fond of traveling. They travel during the Diwali season. They have a full that pancham what they call, and they travel like anything. So just imagine you go to a city or go to a hill resort. You make an entry, you make payment of GST. You have a register where you make an entry of your present. That okay, I have come. These are my basic details. Now most of the hill resorts have different class of hotels. In many of the hotels, what they do, they maintain two set of registers. One set of registers which is going to reconcile with the invoices they are going to show in their GST return. The other set of register is never going to be the part of the records, even though you will get some document where it will appear in yes इतना GST पे किया है, but mind it, पीछे से वो जो इनवॉइस है वो गायब होगा. और गायब क्यों होगा? वही जो मैंने आपको बताया कि महीने में अगर 100 गेस्ट आके रुके तो उसमें से 10 गेस्ट से कलेक्ट किया हुआ 18% या 12% का टैक्स अपने जेब में रख लिया जाएगा. एंड माइंड इट इज वेरी इजी टू डू इन केस ऑफ सर्विसेज. गुड्स में करना बड़ा मुश्किल है. गुड्स में तो क्या होता है, माल बिकता है और उसके बाद उसका अमाउंट कोई देता है तो वो इनपुट के लिए लड़ता ही लड़ता है. लेकिन जहां पे कोई इंडिविजुअल डील कर रहा है किससे, टू अ पर्सन जिसको वो इनवॉइस सर्विसेज के इनवॉइसेस दे रहे हैं, वहां पे कोई ट्रेल मेंटेन नहीं होती. मैंने सर्विसेज बनाई क्योंकि गुड्स के केस में तो अगर परचेज का इनवॉइस है तो सेल्स का तो काटना ही काटना पड़ेगा. लेकिन सर्विस के केस में कोई परचेज तो होती नहीं है. आज कोई आदमी किसी हिल रिजॉर्ट पे जाके रात में रुका और अगले दिन वो चला गया और उसको मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें मैंने जीएसटी भी मेंशन किया और बाद में वो बिल फाड़ दिया. किसी को पता नहीं लगेगा. नो वन विल एवर एबल टू नो. देने वाला तो कहेगा मैंने तो बहुत बढ़िया किया, नकद में पैसे दिए. एक ही तरीका है ट्रांजेक्शन को रोकने का, डिजिटल पेमेंट्स. अगर पैसा खाते में चला गया तो फिर ये डी वाला ट्रांजेक्शन वो नहीं कर पाएगा. इसलिए कई बार वो कहते हैं कि साहब हमारी स्वाइप मशीन काम नहीं कर रही, आप कैश दे दो. Might be some scrupulous thing. So here I have explained you how the clause D and why the clause D has been made part of the logbook. जो एग्जाम्पल मैंने अभी शेयर की, तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पहले दिया था जहां पे एक पर्सन के पास बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा था, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो यूटिलाइज धीरे धीरे रिटर्न में करना चाहता था. क्या उसकी वजह से ये इन्वोक हो जाएगा? मेरा प्राइमा फेसी व्यू है बिल्कुल नहीं. बट आई टेल यू, जैसे जैसे आप लूज लैंग्वेज लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी विद एन इंटेंट टू एवेड टैक्स वर्ड यूज नहीं है, जैसा क्लॉज ए में मेंशन था, डिपार्टमेंट अपना इंटरप्रिटेशन देगा एंड दैट विल लीड टू अ टसल. बिकॉज मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया ये मेरे संग हुआ था एक मोटर कार डीलर के केस में. द रिस्पेक्टिव पर्सन हु केम आउट फॉर सर्वे एंड सर्च, दे सेड इट कि हम तो ये क्लॉज इन्वोक करेंगे. मैंने कहा सर देखिए थोड़ा तो आप भी समझते हैं, थोड़ा हम भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं. This is not a case where you can invoke clause D. It is for a specific reason and then only that can be triggered. If a person has just not filed his return for his own reason, for own understanding, आप लगाओ ना, आपको लगाना है, आप उस पर रिटर्न लेट फाइल करने की लेट फीस लगाओ, पेनल्टी लगाओ, जो लगानी है लगाओ, लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दोगे? My clear cut answer to that fellow was no, and finally we were able to convince him also that D cannot be read like this, that in these cases it can be invoked. बट माइंड इट, मैं सारे उन डीलर्स को अगेन चेताना चाहूँगा, सरकार ने प्रोसिक्यूशन प्रोविजन को थोड़ा अलग तरीके से अब लेना चालू कर दिया है. आप सब लोग समझते होंगे कि टीडीएस के केस में भी प्रोसिक्यूशन प्रोविजन बहुत लॉन्च होता है. वो कब लॉन्च होता है? उनका ये कहना है कि आप एक पर्सन हो जो क्या करते हो, टीडीएस काटते हो. टीडीएस पे राइट किसका है? टीडीएस पे राइट है सरकार का, क्योंकि वो टैक्स किसी और ने अपनी पॉकेट से एक तरीके से एडवांस टैक्स की तरह बिहेव किया. कहते हैं यार इंटरेस्ट तो दे देंगे सरकार का, बट द पॉइंट इज तब तक हम उस पैसे को यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है. जीएसटी में मैंने कई बार देखा है लोग टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और कई महीनों तक अपनी रिटर्न इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि रिटर्न भरने का पैसा जमा कराने के लिए होता नहीं, क्योंकि वो पैसा जो हमने महीने भर कलेक्ट किया था, हमने क्या किया, हमने वो 50 दिन का क्रेडिट उठा के अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर दिया. क्योंकि पैसा ऐसा तो है नहीं कि जीएसटी का कलेक्ट करके आदमी अपने बैंक अकाउंट में रख लेता है, पैसा तो पैसा होता है. और
महीने के नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जब रिटर्न भरनी थी तब ठंडन गोपाल, तब पैसे नहीं थे। अब जब पैसे नहीं थे तो आपने रिटर्न लेट करी, और रिटर्न लेट करते करते 3 से 4 महीने निकल गए। मैं सारे ऐसे डीलर्स जो ये प्रैक्टिस करते हैं या कंसल्टेंट जो अपने ऐसे डीलर्स को फेस करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है उस केसेस में मैंने जो इनपुट टैक्स का एग्जांपल दिया था, जहाँ इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करना है, वहां तो मुझे दिक्कत नहीं लगती। लेकिन जहां आपको नेट कैश जमा कराना और आपने जमा नहीं कराया, ये डी क्लॉज आपको परेशान कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, यू कैन नॉट यूटिलाइज द मनी ऑफ गवर्नमेंट इन एज पर योर ओन विश एंड चॉइसेस। दैट इज अ मनी यू हैव कलेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रस्टी, and your responsibility is to report as well as to make pay to the government at the earliest. So request to do it at the earliest and not to make yourself, I should say, suspected to these kind of provisions. चलिए, अब मैं आपको, क्योंकि मैंने अभी तक आपको 4 प्रोविजन समझाए जो जिसपे डिपार्टमेंट सेक्शन 69 के अंदर अरेस्ट प्रोविजन इन्वोक कर सकता है, अब मैं आपको कुछ और प्रोविजन बताता हूँ जो आपको बताएंगे कि कैसे एक सर्टेन मॉनेटरी लेवल तक के वो क्राइम है उन्हीं को पकड़ा जाता है, बाकियों को भली वो चारों तरीके के क्राइम हो तो भी यू कैन नॉट इनिशिएट अरेस्ट। प्रोसिक्यूशन तो एवरी केस में लॉन्च हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अरेस्ट। सो दे से दैट टैक्स एवेजन, एक अमाउंट पकड़ लेते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये चार्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा। 5 करोड़ एक ऐसी थ्रेश होल्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 करोड़ की थ्रेश होल्ड से ऊपर की अगर टैक्स चोरी होती है तो ये चारों प्रोविजन में डिपार्टमेंट अरेस्ट प्रोविजन इन्वोक कर सकता है। पॉइंट इतना सा है, 5 करोड़ निकालें कैसे हम? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, अभी वो भी बहुत सारी जगह सेटल होना बाकी है, कि मैंने आपको एग्जाम्पल अरुण का दिया था, जॉनी का दिया था। अब मान लीजिए मैंने एक ही, अब मैंने 4 एंटिटी बनाई, उन चारों एंटिटी का अगर टर्नओवर क्यूमुलेटेड देखेंगे तो टैक्स इम्पैक्ट 5 करोड़ आ जाएगा। लेकिन फाइनल एंटिटी जिसने आगे इनवॉइस दिया उसका टर्नओवर अगर देखिए तो वो तो 50 लाख भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने लेयरिंग करी थी। अब क्या उन सबको क्लब करेंगे या इंडिपेंडेंट देखेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। अभी डिपार्टमेंट क्या करता है, कोर्ट्स के आगे जब प्रेजेंट करता है तो मान लीजिए मेरी 25 एंटिटी के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी उन सबको उठा के जोड़ देता है। अरे भाई, तुमने उनको जोड़ तो दिया, लेकिन ये तो देखो फाइनल टैक्स इम्पैक्ट तो मात्र 2 करोड़ 4 करोड़ का है। वो इसी टर्नओवर को पहुंचा देते हैं जहां पे टैक्स इवेजन 40 करोड़ का बताते हैं। क्या मैंने 40 करोड़ कमाए? आंसर इज नो। क्या मैंने 40 करोड़ पास ऑन किया? आंसर इज नो। क्या ये 40 करोड़ की कोई वसूली होगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये कभी 40 करोड़ वसूल नहीं होंगे। लेकिन आज कोर्ट के आगे ये दिखाने के लिए कि कितने फिगर की चोरी हुई है, इट अपीयर्स टू दैट 40 करोड़ इज द सस्पेक्टेड क्राइम फॉर विच वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, एंड दिस मैटर टर्न्स इनटू कि यार ये तो बिल देने लायक नहीं है, वो 40 करोड़ देश के रेवेन्यू में से निकाल के चोरी कर लिया जाए, एंड द कोर्ट्स गेट्स रिजेक्टेड। सो दिस amount is something which is relevant, how it is ascertained, how it is calculated. But just keep in mind, threshold of 5 crore is very important in all these transactions. Repeat offenses, अगर आप एक बार ऐसे क्राइम करते हुए पाए गए और दोबारा वापस उसी क्राइम को करते हुए पाए गए, irrespective of threshold, आप प्रोसिक्यूशन के दायरे में आ जाते हैं. But you can be arrested because that's how section 132 has been given. Now I am coming on reason to believe is prerequisite. As I discussed earlier, it is basically different from reason to suspect. अच्छा, अब reason to believe कैसे बनाए जाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं तो मैं एग्जांपल दूं कि आपने तो ई-वे बिल भरा, आपने इनवॉइस भी बनाया, और बेटर मान लो ई-वे बिल नहीं था, सिर्फ इनवॉइस बनाया, और आपने कहा माल निकला है सूरत से अहमदाबाद तक। सूरत से अहमदाबाद तक के रास्ते में कई सारे टोल नाके आते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा सूरत से अहमदाबाद माल गया था, ई-वे बिल से पहले की बात बताऊँ, ई-वे बिल के बाद की भी कर लेंगे, बट सूरत से अहमदाबाद माल गया था, ई-वे बिल भी है, ई-वे बिल नहीं भी है तो अच्छा गया था, ट्रांसपोर्टर की बिल्टी भी है, हाँ साहब बिल्टी है, देखो ट्रांसपोर्टर की बिल्टी। अच्छा, ट्रक नंबर क्या था? ट्रक नंबर फला था। अच्छा, तो ऐसा काम करते हैं हम, टोल नाकों का एक कैमरा निकालते हैं उस पर्टिकुलर दिन का, एंड दे कैन very well empowered, the department is very well empowered to issue a notice to the toll agency who is maintaining that toll naka, saying that this particular day video I require, and please fetch out from your data whether this particular truck was passed through that or not. And if the answer comes to no, that is sufficient reason to believe to take you behind bars. Because if you are saying that I have sold the goods but that truck has not traveled from there, and you from your 100 samples, if they take from your 100 transactions, they are able to take out 10 samples where effectively that is not in existence, that is sufficient to make reason to believe to any person that
Sorry, you required investigation. I'm giving just simple example. दूसरा एग्जाम्पल पकड़ते हैं. अच्छा, आपकी इस पर्टिकुलर जगह पे दुकान है. अच्छा, कितने करोड़ की सेल होती है वहां से? 100 करोड़ की. अच्छा, 100 करोड़ की सेल हुई तो 18% 18 करोड़ का टैक्स आगे गया. उस प्रेमाइसिस पे जाके देखते हैं तो वो प्रेमाइसिस जो है ना, उसके आसपास एक भी पक्की रोड नहीं है. और वो जब उस प्रेमाइसिस या उस प्लॉट नंबर पे पहुंचते हैं तो उस प्लॉट नंबर पे सिर्फ बाउंड्री दिखती है, कोई कमरा भी नहीं दिखता. Is this a sufficient reason to believe? Definitely, that's a sufficient reason to believe, to say that you are carrying out an activity of turnover of 100 crores, 18%. पॉइंट इज, ये सिर्फ एक नहीं होती, बहुत सारी चीजें और भी साथ में सर्कमस्टेंशियली देखी जाती है. बट जब रीजन टू बिलीव की कहानी आती है तो रीजन टू बिलीव बनाने के लिए कौन कौन से एग्जांपल्स लिए जाते हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लिए जाते हैं. दिस इज वन सच एग्जांपल कि आज इंस्पेक्टर जाएगा उस प्रेमाइसिस का जहां पे आप कहते हैं कि आपने इतना बड़ा टर्नओवर किया है, उसको जाके इंस्पेक्ट करता है और वहां कुछ नहीं मिलता. Mind it, you are in a problem. So that is some of the examples which I have said reason to believe. I am using a term believe, not suspect. ऐसा नहीं है कि कोई 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करता है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में इतनी रिटर्न नहीं दिखती तो 100 करोड़ का कर ही नहीं सकता. This is suspicion. You have to go something further. You have to carry out search of that premises what he is saying. You have to take his statements. And I mind it, अभी हम डिस्कस भी करेंगे. सेक्शन 70 का स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, जो कि नॉर्मली जो कन्विक्ट होता है वो उसको डरा धमका के या फिर अंडर प्रेशर या फिर मैं बोलूँ उसकी सेल्फ विश से ऐसे लिया जाता है कि वो खुद ही कबूल लेता है कि मैंने क्या किया. और एक बार वो स्टेटमेंट आ गया, माइंड इट, द पर्सन इज गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम इन कोर्ट ऑफ लॉ. I have taken some of the examples. I'm not going in detail of that. Again, it will require substantial time from me, and I have still a lot to cover. Coming on basics of CRPC. Now, I will discuss 4 terms of criminal procedure code with all of you, which you should be aware of, because definitely we all practice GST, and that's again, it appears to be a core area of 4 terms, core CRPC terms. But mind it, you are a professional now, and when you are a professional, these 4 terms are something which very I should say commonly you find in various laws, various economic laws. So you should be aware of that, what does they mean. Now there's a one term which says cognizable, there's another term which says non-cognizable, there's a term which calls bailable, and the other term is called non-bailable. Let us understand it, and they have to be read in pairs. If a crime is a cognizable and non-bailable, what does that means? It means that the investigating officer, also to be called as GST officer, can initiate the arrest process without a permission of a court or any senior authority, and that crime is called as non-bailable. And when I say it is non-bailable, what does that mean? The bail cannot be granted? Answer is no. The bail can be granted, but with the permission of the court of law. So cognizable and non-bailable means that a crime wherein the assessing officer or investigating officer doesn't have to wait for a court to take a permission, he can directly arrest it. And if he arrests such person, he himself cannot grant a bail, he has to take him to the court, and from there only a bail can be granted. When a crime is non-cognizable and bailable, what does that mean? Non-cognizable means a crime effectively wherein the investigating officer has to take a permission from a competent court or a competent authority before initiating an arrest. Second, that is a bailable offense. What does that mean? That a person can be released on a bail by the same officer, and I tell you, very simple process where he just have to give an undertaking or a muchalka, what we call it, where he gives in writing that I will bind myself to appear before you anytime when it is required, and I am not going to hamper any kind of investigation. That's a kind of affidavit that person has to give the person to who has arrested him. So non-cognizable crimes are bailable in nature. So if we talk about GST, a crime less than rupees 5 crore comes under non-cognizable and bailable, and so normally they do not even initiate any kind of arrest because they know, and immediately they have to grant him bail. Now, bail types.
Why I'm explaining you? Just to give you a basic idea how the CRPC works. Or even in GST matters, if a bail has to be granted or what kind of strategy has to be designed, that will depend upon what are the options available of bail. So that's why I'm giving you a glimpse of it. One is 438, we call it anticipatory bail. I will tell that it is a kind of bail request which is given to the court even prior to getting arrest. So it may happen that a dealer has taken goods from a person who has been found as convicted of an offense or who has been arrested because he is a mastermind. Then in that case, the person who has purchased the goods may approach for anticipatory bail on the ground that the department may come and investigate me because I have purchased goods from this fellow. Whereas in my case, I have purchased the goods as well as the goods are physically available with me, but the department may initiate any action against me. So please grant me anticipatory bail. And therein effectively he says that I am binding myself to this court of law that whenever required, I will be coming and helping in investigation, and I will not be hampering any evidences or any persons who are going to be witnesses in the matter. 437 439 अगर कोई आदमी अरेस्ट हो जाता है तो 437 के अंदर बेल लगती है मजिस्ट्रेट के आगे, इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट मजिस्ट्रेट के आगे, एंड 439 में बेल लगती है टू अ डीजे और एडीजे whosoever it is being assigned and to the court of the high court. So 439 basically takes care of that nature of bail and 437 talks about bail before a magistrate. 482 writ, this is a procedure where effectively if there is some process flow in carrying out the exercise or there is something which has been carried out which is prima facie illegal, you can directly approach High Court saying that under writ of habeas corpus or under 482 to quash itself the matter because that is totally illegal. And 167(2) is a default bail. Just to tell you as a process कि जो भी ऑफिसर को अरेस्ट, जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, 60 दिन के अंदर it is required that the department should complete its investigation and give a, I should say, final complaint before the court of law. अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में 60 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अभी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत टाइम लग रहा है और इसलिए जो अक्यूज्ड है उसका राइट टू बेल अराइज हो जाता है. सो वी कॉल्ड इट इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, इन अ रेगुलर लैंग्वेज ऑफ सीआरपीसी लॉ एज अ डिफॉल्ट. So just to give a glimpse, not to go into technicalities, how it is about. These are two judgments. I'm not taking much in detail. Safeguards process, power to issue summons. Now let me quickly take you through this section 70. Again, a provision which has been given or by which the investigating officer has been equipped and he has been made equivalent to a judicial, the proceedings before him has been made equivalent to a judicial proceedings under IPC when he is taking that statement. So जो बात है वो अगर अपन को समझनी है तो अपन ऐसे समझे कि असेसिंग ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये पावर दे रखा है कि आप सेक्शन 70 के अंदर समन करो और अगर उस आदमी ने अटेंडेंस नहीं करी तो आप उसको 2 या 3 अटेंडेंस उसने अवॉइड करी तो आप बाय वे ऑफ अ कोर्ट can compulsorily get his attendance done or even can take police help to get that person be presented for the statement. अच्छा, स्टेटमेंट किसको दे सकते हैं? अगर उन्हें लगता है कि इस मैटर से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है किसी पर्सन के पास या फिर इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, ऐसे पर्सन को वो समन इशू कर सकते हैं. ओके, जो समन में कहा जाता है वो कितना एडमिसिबल एविडेंस होता है? मेरा ये कहना है that is 100% can be taken against you in the court of law. कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है, मैं डिस्कस करूंगा. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपने सेक्शन 70 के अंदर स्टेटमेंट लिखते हुए कोई बात बोली, नाउ इट इज ओनली अपॉन यू टू प्रूव इट कि ये चीज आपने जो बोली ये डरा धमका के जबरदस्ती से आपसे लिखवाई गई थी. सो माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल दोस हु आर लिसनिंग, if they have to counter any such situation where section 70 proceedings are being done, my request is that irrespective of the nature of, I should say, pressure being made by the person who is recording your statement in the section 70, do not succumb yourself. कई बार प्यार से, कई बार फुसला के, कई बार ऐसे भी कहते हैं कि साहब हम आपको छोड़ देंगे, बस ये स्टेटमेंट में लिख दो, या फिर किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट यूज करना है तो वो कहते हैं नहीं प्लीज आ जाइए, आप लिख दीजिए, आपको हम कुछ नहीं करने उस मैटर में क्योंकि आप इनडायरेक्टली रिलेटेड हो. These kind of laws are given because I have been part of many of these investigations. When I see them,
Yes, that's their part of the work. I never question them. I request, with my due heart, I respect all of them who are carrying out their duties, being other side of the table, because that is their work. But at the very same time, when you are from the consultant side, my request is that do not succumb to this. Do not write anything which is not correct or anything which can be used against you in trial court. So be very cautious while giving section 70 statement. अच्छा, लेकिन कई बार सिचुएशन ये आती है कि नहीं साहब, उन्होंने तो हमें मार पीट के हमसे कुछ भी लिखवा लिया. For that, the protection is available in form of retraction statement. Now, what is this retraction story is all? आपसे कोई स्टेटमेंट लिखवाए, आपसे डरा धमका के लिखाए गए, you have to immediately go to the court, to the respective police jurisdiction of yours, or to the senior to that officer, and give a letter in writing saying that on this particular date I was issued a summon. I presented before him, and during that process he has taken certain statements which were under coercion, and so accordingly this statement should not be relied upon me, and immediately that should be given to his senior officer, the person who has taken the statement from you, and if required, so the copy can also be given to the nearest police station and taken a seal so as for your future records. Now, why I am suggesting so? Because the law or the courts have interpreted in this way that if any statement, because see, I tell you what happens under section 70, the person has to come individually. You cannot take a legal assistant. The courts have established it very clearly. You cannot take a CA, you cannot take a lawyer with you, because that is a statement which has to be taken from you. And a question will be put and you have to answer. Now, the point is what is happening inside the room. The consultant never gets an idea, but if that happens, something which is going to create a problem, the option available is this, that you can very clearly say that this statement has been taken under coercion and should not be relied upon. Many times what happens, the person who has given the statement is immediately taken to the court of law because he has been arrested. पहले उसके statement कर जाता है, immediately उसके बाद उसको arrest कर लिया जाता है. उस केस में वो क्या करें? Then we have section 136 under the GST law, which says that if any statement has to be relied upon during a trial before a court of law, then the important thing is this, that this particular statement should be again confirmed before the court of law. And before the court of law, if that statement is not confirmed, that cannot be taken as admissible evidence. So always a cross-examination and an opportunity of confirming those statements will come in the trial stage. There effectively you can retract it, but that will take some time because वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत आगे जाके होने वाला है. अगर आप कभी ऐसे स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं तो रिट्रैक्शन एक ऑप्शन है, और अगर दूसरे वाले का बनते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप ये कर सकते हैं. Now, here I am taking a very important topic, and all those my friends who are also carrying out certain litigation matters as a practice will understand it in a very clear manner. देखिए, मैंने आपको ये समझाया, मैंने जब स्टार्टिंग में एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, अरुण वाज देयर, उसके नाम पे मैंने फर्म में बनाई थी और मैंने किसी थर्ड पार्टी को फाइनली जाके बिल दिया था. आप मुझे एक बात बताइए, ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये टैक्स की चोरी हुई है, इस टैक्स की वसूली होनी है, तो क्या ये ट्रायल में होगा या 73-74 की शो कॉज नोटिस की प्रोसीडिंग्स में होगा. जो भी लिटिगेशन करते हैं, जिन्होंने भी रिलेवेंट प्रोविजन जीएसटी लॉ के देखे होंगे, मैं उनको एडिशनली ये बताता हूँ कि आपकी रिकवरी कभी भी प्रोसिक्यूशन का पार्ट नहीं बन सकती. इट विल हैपन ओनली एंड ओनली इन शो कॉज नोटिस प्रोसीडिंग्स बिकॉज सेक्शन 73 एंड 74 आर देयर. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जो मास्टरमाइंड हूँ, मैंने तो 50 करोड़ की ट्रांजेक्शन करी है, लेकिन कमाया तो 2% था, 1% था या 5% था. मेरे से मेरा सारी असेट्स को कुर्की भी कर ले तो भी ये रिकवरी नहीं कर सकते. रिकवरी फाइनली होगी उन बिजनेस डीलर से जिनको मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया था. सो अभी तो इनको वो आइडेंटिफाई करना भी बाकी है कि ये पैसा फाइनली रिकवर किससे किया जाएगा. टैक्स चोरी होकर पैसा फाइनली पहुंचा कितना, या मैंने कितनी उससे कमाई करी. And that can be done only and only after issuing a show cause notice or carrying out the adjudication exercise. So अभी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके बेसिस पे महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई सारी बेल भी ग्रांट करी, बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने उस पर क्वेश्चन, लार्जर बेंच में वो क्वेश्चन पेंडिंग कर दिया, और जस्टिस रंजन गोगोई, ऑनरेबल सीजेआई ऑफ द कंट्री, उनकी बेंच ने एक सिंपल स्टेटमेंट से हाईकोर्ट्स को ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो इस ग्राउंड पे बेल नहीं ग्रांट करें कि एडजुडिकेशन पहले होगा या फिर पहले प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा. बट इससे पहले ये बहुत सारे आर्गुमेंट, अभी ये क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं है, लार्जर बेंच के पास पेंडिंग पड़ा है. बट द पॉइंट इज वेदर अरेस्ट कैन बी कैरिड आउट बाय अ मेयर
आई शुड से प्रिटेक्स्ट कि बिना शो कॉज नोटिस के अरेस्ट कैरी आउट कर ले, या फिर पूरा एक प्रोसेस करने की जरूरत है बाय इशूइंग ए शो कॉज नोटिस और उसके बाद अरेस्ट कैरी आउट करें. सो इफ आई सी द स्कीम ऑफ द लॉ, एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है मद्रास हाई कोर्ट का, जहां पे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ दिखाया. इट इज अ पार्ट ऑफ माय दिस प्रेजेंटेशन, जहां पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया दैट बाय कैरिंग आउट अरेस्ट इवन प्रायर टू अफिक्सिंग द लायबिलिटी, यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. नॉर्मली तो घोड़ा गाड़ी के आगे होता है, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस करते हैं कि अरेस्ट पहले करते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन एडजुडिकेशन कंप्लीट करे हुए, so you are basically putting the cart before the horse, and that is not tenable. The law and scheme of the law has to be read in this manner, that first you have to identify what is the amount of tax evasion, what is the amount through which and who has evaded the tax. Prior to that, please don't carry out this arrest exercise. तो कौन से, अच्छा एक्साइज में कई बार ये होता था, या फिर मैं बोलूँ इनकम टैक्स इज अ बेटर एग्जांपल टू दिस, कि पहले सर्च होती थी, सर्च के बाद असेसमेंट कंप्लीट होता था, असेसमेंट में कमिश्नर को अगर रिकमेंडेशन प्रोसिक्यूशन देनी थी तो वो देता था, एंड देन प्रोसिक्यूशन स्टार्ट्स. तो इनका ये कहना है कि एक बार आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, उस पर्सन का जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना है उससे पहले उसको अरेस्ट कर लीजिए, उससे जो भी आपको लिखवाना है वो समझिए, उससे इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद प्रोसिक्यूशन करें. वो कहते हैं इतना तो इंतजार हम करेंगे नहीं, हमारे हिसाब से लॉ ऐसे लिखा हुआ है कि इमीडिएटली अगर हमें रीजन टू बिलीव मिलते हैं हम अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करके कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे, एंड पोस्ट दैट हम एडजुडिकेशन कंप्लीट करते रहेंगे. पॉइंट इतना सा है कि आपने एक्सरसाइज तो कैरी आउट कर ली, लेकिन दिस गिव्स अ वेरी, I should say, tricky power, or I should say a power which there are chances of getting misused to the officer, that कि adjudication करे बिना वो किसी को भी on basis of suspicion might lead to arrest, और हो सकता है उसमें वो properly exercise carry out हो ही नहीं, क्योंकि अभी तो आपने उसको मौका ही नहीं दिया. It is little bit different than, I should say, one has to understand that the criminal jurisprudence to be developed in a crime, whereas a crime against a person, and criminal jurisprudence to be developed in economic offenses need to be developed differently. But right now they are moving in hand in glove, but they actually have to be read differently, and they should be identified कि इन मैटर्स के अंदर अगर एडजुडिकेशन नहीं होता और उससे पहले अरेस्ट हो जाती है, so it might lead to a very grave or very absurd situations. That's how it has to be. मैंने कुछ जजमेंट है जहाँ पे मेक माई ट्रिप सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले एससीएन दो, बाद में अरेस्ट प्रोविजन करेंगे. Judge and the lawyers is again which I was highlighting. There's some regarding Gujarat High Court judgment also, where effectively this point was discussed. So just a glimpse of those judgments which are important in this case. Now here I'm also highlighting a judgment of Honorable Supreme Court, even though that was with respect to limited question of whether a bail can be granted or not. They have very categorically discussed that if the person to whom the tax alleged is say 20 crore and 10% that is 2 crore that he has deposited. So they say that under GST law, what we see that by making payment of 10%, a person can fight out till Supreme Court. So when a person has deposited 10%, so that can be appropriate ground for granting bail also, considering facts and circumstances of the case, because bail is basically a right to the judge available, and there's no absolute law to this. The facts, circumstances can be examined as per the choice of the judge. So here also considering the facts, the Honorable Supreme Court considering a very important point कि 10% जमा करा दिया तो बेल क्यों नहीं ग्रांट कर दी जाए, क्योंकि लड़ने का राइट तो उसके पास entirety तक है. So in that basis that was granted. Now here I am with again a very interesting judgment in Akshay Krishna Maggo versus DGGI. That's a Punjab and Haryana High Court judgment. Here I wanted to discuss the Honorable High Court has very categorically given a clear-cut demarcation of the role of a chartered accountant or a tax practitioner or an advocate. They say that if you cannot have very clearly identify that the person is a beneficiary in the fraud, and if you can't come out from the records, and you can just say कि उसका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फ्रेशर था उसने अपनी ईमेल आईडी दे दी थी, उसने अपना टेलीफोन नंबर दे रखा था, मोबाइल नंबर दे रखा था फॉर ईज, क्या उसको इमीडिएटली गिल्टी कराया जाएगा, या जिसने बेसिक केवाईसी का ध्यान नहीं रखा, या फिर उसने ये ध्यान नहीं रखा कि यार इतना टर्नओवर करने वाले आदमी की प्रीमाइसेस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, या फिर बुक्स और रिकॉर्ड्स उसके ऑफिस में मेंटेन होते थे, क्या इसी वजह से उसको गिल्टी कर दिया जाए? आंसर इज नो.
Honorable High Court say that until unless prima facie also you cannot identify that he is a beneficiary or part of a fraud, merely on the basis of suspicion, you cannot put even a arrest provision against that person, and to be very careful. So this judgment actually gave us a strength that while carrying out our professional duties, how we can create a demarcation. We should be very clear that by no chance these benefits should be accruing anyhow to in our account, which may create a problem to us. Now here I am discussing certain new measures which has been introduced as a part of the GST law, when effectively post understanding this whole gamut of how these transactions are carried out, they have introduced certain provisions under the law by which they try to take care. जैसा आपको पता भी होगा, वैट के टाइम में अगर कोई रजिस्ट्रेशन लेना होता था तो जो फील्ड ऑफिसर था उसका काम था जाके देख के आए कि वहां पे वो प्रीमाइसेस भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं कर सकती। तो अब उनको भी पता लगा है, रिसेंटली दे हैव इंट्रोड्यूस और मैकेनिज्म वेयर दे से दैट either there should be Aadhaar authentication or the person will come and visit your premises, so that we should be assured that yes, the registration which is being taken is not illegal, not incorrect or not a bogus one. And I tell you by this, many of those cases जो मैंने आपको डिस्कस करे थे पहले, उसमें से काफी सारे इसी बेसिस पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऑफिसर आता है ये देखते हैं धंधा तो है नहीं, तो खाली प्लॉट है, तो उस प्रीमाइसेस का रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत हिचकेगा जो मास्टरमाइंड है। To the shore, crime पूरा नहीं रुकेगा, but yes, to a greater extent, a control can be exercised on these transactions. Now, I am discussing certain more examples. 36(4) to block credit when credit which cannot be taken more than 10% of GSTR to है। कई सारे मेरे प्रोफेशनल कलीग से जब डिस्कशन हुआ, ये 36(4) आया, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक लिमिट लगा दी। और लिमिट कैसे लगा दी कि हम आपका GSTR 2A का 10% और 20% से ज्यादा का क्रेडिट ही आपको अलाउ करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके पास इनवॉइसेस कितने के अवेलेबल हो। कहते हैं यार ये क्या मजाक है, जो जेन्युइन बिजनेस है वो गालियां देता है, वो कहता है कि भाई ये क्या तरीका है, मेरे पास इनवॉइस आ गया, सामने वाले ने अपनी रिटर्न नहीं भरी या फिर वो अपनी क्वार्टरली रिटर्न भरेगा, आपने मेरे GSTR 2A के बेसिस पे मेरा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। आई हैव अ डॉक्यूमेंट, प्लीज ग्रांट मी इम्यूनिटी। और सबसे बड़ी बात कि सामने वाले के पास वो कहता है कि साहब मेरे पास तो अगली सितंबर तक, साल के एंड के बाद भी अगली सितंबर तक रिटर्न बनेगा, रिटर्न नहीं भरता मैं ब्याज दूंगा, आपको जो करना है कर लो। वो कहता है भाई यार ये क्या कर रहा है, तेरी वजह से तेरा तो ब्याज ही लगेगा, मेरा तो मूल ही अटक गया, क्योंकि उसको तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। नाउ व्हाई दिस हार्शनेस? ये तो प्रोविजन पढ़ के हमको लगता है, बट आई टेल यू, मैंने जो आपको सारे एग्जाम्पल्स अभी बताए, जहां पे सामने वाले ने अगर GSTR 1 नहीं भरी या GSTR 2 में सामने वाले के डेटा नहीं दिखा, अगर ऐसा हो रहा है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला एग्जांपल दिया था, जहां पे मैं GSTR 3B में कोई भी अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का भर देता हूं और क्रेडिट ले लेता हूं, 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। क्योंकि आप सबको पता होगा ये नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं वो पर्सन हूँ जिसके रजिस्ट्रेशन में पहली बार वो इनपुट डाला जाएगा। अच्छा, इनपुट तो कुछ भी अमाउंट का डाल दिया, लेकिन मेरे पास पीछे GSTR 2 में क्रेडिट कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे पास कोई बिल ही अवेलेबल नहीं है। तो मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 महीने के अंदर मेरे प्रीमाइसेस पे एक नोटिस आएगा, या फिर मेरे असेसिंग ऑफिसर को, मैं बता दूं आपको, इनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बन चुका है। जो ये GSTR 2A के नोटिस आते हैं, ऐसा नहीं असेसिंग ऑफिसर की टेबल पे खुद ही आ जाते हैं। GSTN को इन्होंने एक मॉड्यूल दे रखा है कि अगर किसी आदमी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है और उसकी GSTR 2 में डेटा नहीं आता है, तो आप उसके असेसिंग ऑफिसर को एक डैशबोर्ड पे एक मैसेज भेज दो कि भाई इस आदमी के संग ये गड़बड़ हो रही है, और उसके बाद वो असेसिंग ऑफिसर अपने लेवल पे वेरीफाई कर लेगा। एंड आई टेल यू, because of that many suspected person have been taken behind bars just because of this 36(4). I understand कि इसकी वजह से genuine businessman बहुत परेशान होता है, but I tell you effectively it is a very important provision to curb tax evasion of fake invoices. Moving further, 86A for blocking credit if the officer is reason to believe, ये क्या है ये मैं बता दूं। इसमें ऑफिसर को एम्पावर कर रखा है कि अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन ने ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है जो कि ऐसे इनवॉइसेस पे है जिस पे माल की सप्लाई नहीं हुई है, या फिर इफेक्टिवली वो पर्सन जिसके पास इनपुट का डॉक्यूमेंट ही नहीं है और उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो उसकी ECL में जो भी अमाउंट है उसको ब्लॉक कर दो। अब ये है क्या, मैं बता दूं, ये है प्रोविजन इस तरीके का, जहां पे मैंने इनवॉइस दिया किसी को, वो यूज करने वाला है, इनवॉइस का अमाउंट से
1 करोड़ है, 18% 18 लाख रुपए टैक्स है, उसने 3 या 4 लाख रुपए तो यूज कर लिए, लेकिन अभी 15-1 लाख रुपए बाकी है और मुझे पकड़ लिया। तो क्या करेंगे, मैंने जितनी भी फर्में मेरी थी जिनसे मैंने इन्वॉइसेस इशू करे थे उनका डेटा चेक करेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने किन किन फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है, और उन सारी फर्मों को ईसीएल में जो भी अमाउंट पड़ा है उसको इमीडिएट बेसिस पे ब्लॉक करेंगे। वो क्यों करेंगे? ताकि वो अमाउंट यूज नहीं हो जाए, क्योंकि अगर वो अमाउंट यूज हो जाएगा तो यूं मान लीजिए कि एक तरीके से मैंने चोरी पकड़ भी ली, लेकिन तो भी कोई और आदमी आया और उस चोरी के पैसे को उठा के ले गया। So by this provision, they has given immediate power to block all those credits which are lying in those accounts, which have received any invoice from a person who has issued invoices without supplying of goods. बट इसमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ बिजनेसमैन फेस कर रहे हैं। 2017 का ट्रांजेक्शन 2019 में आप क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हो। अरे भाई वो क्रेडिट अभी तक पड़ा हुआ क्या? असिस्टेंट ऑफिसर ने तो ये कह दिया कि भाई कुछ भी क्रेडिट पड़ा होगा हम तो ब्लॉक कर देंगे। दिस इज हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग, एंड अगेन वी आर कंटेस्टिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ रिट, सेइंग दैट कि हमारे पास हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, यू कैन नॉट डू इट, एंड दैट्स ऑल द स्टोरी गोज ऑन। सो 86A again a provision to curb this. However, how it is being utilized, how it is practically implemented, and whether creating problem for general business or not, that's I'm setting apart. Again, fourth one is very important. अच्छा, मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल तो रह गया जब मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर रहा था। ये जो मास्टरमाइंड होता है ना, उनका दिमाग बहुत ही शार्प होता है, और कुछ तो बिल्कुल पराकाष्ठा होती है जो मैं बोलूँ उस लेवल के शार्प होते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी प्लानिंग करते हैं जहां पे ये एक्सपोर्ट दिखा के रिफंड ले लेते हैं सरकार से। मतलब एक तो इनपुट का नुकसान किया, बोगस इनपुट डाला, और उस इनपुट का भी ये बताते हुए कि हमने कंट्री के बाहर माल एक्सपोर्ट किया और रिफंड ले लिया। और वो कैसे करते हैं? वो ये बताते हैं एक्स माल को 10 टाइम्स हायर वैल्यू का दिखा के भेज देते हैं कंट्री के बाहर, और एक बार रिफंड लेके गायब हो जाते हैं। पॉइंट इतना सा आता है कि सरकार को सीधा सीधा कैश हिट, सीधा सा, क्योंकि आई अगेन वाज मेड पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, जहां पे दिल्ली के अंदर एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया जो काम ये करता था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी लेता था और उसके बेसिस पे कैश रिफंड्स क्लेम कर लेता था। ब्यूटी, आई शुड से मास्टर हैज, द पर्सन हु वाज ऑपरेटिंग दिस रैकेट हैज gone beyond my imagination of carrying out this transaction, but that's how the beauty of this transaction was, and where they have effectively turned input tax credit into cash by just using their mind and or I should say process flow of the systems. Power to inspect goods in movement, e-way bill, again a very important provision to curb tax evasion. However, see, what is an e-way bill? Let me just put some thought in your mind. What is an e-way bill? E-way bill effectively is a presentation of a transaction which you will reflect in GST-R1. But I tell you, it is more than that. It is actually tracking each and every transaction of movement of goods in the country which have directly or indirectly implication with tax. अच्छा, इसे होता क्या है? इससे होता ये है कि गुड्स के केस में ट्रांजेक्शन का या फिर किसी भी आई शुड से एक्टिविटी के होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत जरूरी है। अगर ऑफिसर को इमीडिएट बेसिस पे एक बार ये ट्रांजेक्शन मिल जाए कि हाँ ये गुड्स का मूवमेंट हुआ है, या फिर एक मूवमेंट हो जो कि ई-वे बिल से कवर नहीं होगी, इनवॉइस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इनवॉइस नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा ई-वे बिल तो बना ही दो। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना ये है, पहले जो ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट था उसको एक ग्रेटर एक्सटेंट तक कब किया जा सकता है। अच्छा, चोरी करने वाले तो इतने होशियार हैं कि वो एक ही ई-वे बिल से 100 किलोमीटर की दूरी में 24 घंटे के अंदर 3 बार गाड़ियां घुमा देते हैं। दैट इज अ सेपरेट थिंग, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अपॉन इट, बट मान लीजिए ये सिस्टम चालू हो जाए कि हर सिटी के बाउंड्री के बाहर, या फिर मैं बोलूं जहाँ पे आपका टोल नाका आता है वहां पे फास्टैग के साथ साथ एक डिवाइस और लग जाए जो कि ई-वे बिल को हाथों हाथ पढ़ ले। आई टेल यू, चोरी करने में बहुत जोर आने वाला है, खासकर वहां पे जहां पे आप ट्रांजेक्शन को अनडिस्क्लोज बताते हुए ट्रैक कर रहे हो। एंड आई टेल यू, द वे द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, द वे वी हैव मूव्ड टू डिजिटल पेमेंट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन अपन को लगता है कि यार क्या इवेंट हुआ, कुछ नहीं, 3-4 महीने की एक्सरसाइज हुई, बट आई टेल यू इट हैज चेंज्ड द वे ऑफ entering into transaction between people, and you will see
जीएसटी क्या है, कुछ नहीं, इनपुट आउटपुट करना है, जीएसटी ना है, कितनी प्रॉब्लम्स है। बट आई टेल यू, ये सारे मेजर्स वो हैं जो कि अपन को आईटी सेवी या फिर आईटी पे ट्रांजेक्शन्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखने की तरफ ले जा रहे हैं। एंड आई जस्ट टेल यू, आईटी एक ऐसा चीज है जिसकी ट्रेल मिटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर किसी ट्रांजेक्शन की ट्रेल रह जाती है या ट्रांजेक्शन को प्रूव करने के लिए ट्रेल का होना जरूरी है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत एक्सटेंट तक भारत के अंदर ट्रांजेक्शन की चोरी को रोका जा सकता है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे ड्राइव्स हैं। ई इनवॉइसिंग उसी का एक एग्जांपल जो आप कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। हाँ, सिस्टम में दिक्कत है भाई, 133 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो उन ट्रांजेक्शन को एक सिस्टम पे डालना है, क्योंकि जीएसटी है क्या, जीएसटी है वो सिस्टम है जहाँ पे हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैप्चर करना है। तो उसका इंफ्रा बनाने के लिए यस यू नीड अ सॉलिड थिंग। हाँ, हम मानते हैं कि हमने जब चालू किया तो थोड़ा इतना सॉलिड तरीके से चालू नहीं किया, बट यस, दैट्स हाउ द आई शुड से ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हैपेंस इन एनी कंपनी, वेदर इट इज एनी बिग कंपनी। जब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं। जिन्होंने ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन कभी किया होगा, तो मेरे हिसाब से भी वी आर इन जस्ट इन दैट फेज। एंड माय व्यू, what is happening is going to be take all of us in a very good regime, in a very positive regime। और फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स के अंदर वन सच एग्जांपल आई नो। मैं कई बार ऐसे सेशंस पे भी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है यार, it's going to change the way professionals used to work. It's going to change. You have to be very specific and commanding over the subject which you are practicing. And I tell you very specifically, मुझे जितने भी young comers हैं उनके लिए एक एडवाइस तो मैं देता ही देता हूँ, प्लीज हैव सम स्पेशलाइज्ड एरिया, बिकॉज इन कमिंग टाइम आई सी द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ इन अ सब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, पहले अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, फिर पीजी करते हैं। मुझे लगता है हम सारे प्रोफेशंस को भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज अपन को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन की तरफ अपने आप को मूव करना पड़ेगा। अदरवाइज आई टेल यू, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव आई शुड से शाइनिंग प्रोफेशन, बिकॉज सारे प्रैक्टिस सारी चीजें आप फॉलो करेंगे। यस, यू कैन बी अ जनरलाइज एक्सपर्ट और उसकी जरूरत भी है और उस तरीके से काम भी होगा। But yes, if you wanted to actually, I should say, shine your profession, then you definitely have to look into some specialized area of working. You can start with the generalization. It may take some time. You and I have spent my 11 years of my practice working for indirect taxes, but slowly and steadily try to make yourself, I should say, earn a subject area, expert, that if a person say yes subject के बारे में कुछ पूछना है, so let me go to that profession to have an understanding. Just my brief advice to all those who are part of profession, just sharing my experiences. We are at 6:44. I would take some quick points and then I will straightforward jump to my question and answer session. Inspection by means of dummy purchases, I tell you, ये एक प्रोविजन है सेक्शन 69 सबसेक्शन 12, जहाँ पे ऑफिसर को एम्पावर कर रखा है कि अगर वो ये देखना चाहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपर बिल देता है या नहीं देता है, या देता है पहले तो ये चेक करने के लिए, या फिर देता है तो प्रॉपर बिल देता है कि नहीं देता, इज बीन एम्पावर्ड कि वो किसी भी दुकान पे जाके पैसे देके माल खरीद सकता है। और फिर अगर उसको लगता है कि सब कुछ प्रॉपर है तो वो वापस उसको वो माल देगा और उस इनवॉइस को कैंसिल करके अपने पैसे वापस ले सकता है। ये पावर दे रखा है। दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच दे कैन कैरी आउट अ ट्रांजेक्शन, और डेफिनेटली दैट कैन बी अ टूल टू डू अ ग्राउंड सर्वे, meaning still not very prevalently used, not very commonly used, but yes, that's available under the law. Yes, minded PMLA Act. I tell you, now this is what the government is thinking, that the whenever they find, अच्छा अभी क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। पहले जीएसटी ने कोई इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करी, कुछ डाटा मिला, एक बार जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संग शेयर हो, उसके बहुत सारे चांसेस हैं। होता क्या है, in most of the state they have started that let's have a joint meeting, राजस्थान के अंदर होती है, I know it, जहाँ पे से टॉप ऑफिशियल ऑफ आरबीआई, टॉप ऑफिशियल ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटेलिजेंस विंग, they all sit on a common table together, and if they have carried out certain exercise, then they share that data with each other. And in the coming time I know that there possibly can be a portal जहाँ पे कोई भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी और उस पोर्टल पे अगर वो चाहते हैं, उनको लगता है कि ये मैटर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, से इनकम टैक्स का एवेजन है या फिर मनी को लॉन्ड्री किया गया है, तो वो उस डिपार्टमेंट के संग वो डेटा शेयर करेंगे एंड दे आर गोइंग टू यूज, बिकॉज उनको वो डेटा मिलेगा एज अ केक, जहाँ पे अब उनको सिर्फ उसके बाद का
प्रोसेस कैरी आउट करना है, एंड द पर्सन कैन बी मेड, आई शुड से, गिल्टी ऑफ वेरियस ऑफेंसेस. आई टेल यू, मैंने जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस अभी स्टडी करे, जो मेरे को समझ में आया, आदमी जीएसटी में नपेगा, इनकम टैक्स में नपेगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो फेमा में नपेगा, और अगर मैं बात करूं तो पीएमएलए इज समथिंग व्हिच इज अबाउट टू बी अ कप ऑफ अ टी, और ईडी इज समथिंग व्हिच कैन वेरी वेल इन्वेस्टिगेट यू इन दिस मैटर्स. इतना ज्यादा, क्योंकि ट्रांजेक्शन सिर्फ टैक्स एविजन का नहीं होता, वो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, और उस फाइनेंशियल फ्रॉड में लेयरिंग हो सकती है, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, विच डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेक केयर ऑफ इट. सो द शेयरिंग ऑफ दैट डेटा विद अदर, I should say, interested departments is very common exercise, and which also practiced, and PML is what we can see in future. GST audit, मैं quickly इस पे recap इतना सा करता हूँ. Being a person who is an auditor, I request everyone to at least maintain the basic KYC of the client for whose books you are auditing. कई बार क्या होता है, मेरे वही मैंने बताया, नए प्रोफेशनल फ्रेंड्स, लगता है कि यार प्रैक्टिस भी जमा चाहिए, ऑडिट आ रही है, जैसे मैंने अभी ये 5 एंटिटीज की बात करी, इनकी ऑडिट आके बंद करके साइन मत करिए. माय रिक्वेस्ट इज, गो डीप डाउन, हैव अ बेसिक केवाईसी ऑफ द पर्सन हु इज गेटिंग द फाइल इन योर ऑफिस, और एट लीस्ट go for a cup of tea at the office of the person where he's saying that I have my registered premises. I can understand, बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करके ये कह सकता हूँ कि जीएसटी ऑडिट का स्कोप एक्स है, वाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप ऐसी कोई एंटिटी की एंटिटी करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट बनता है, वो आर्ग्यूमेंट बनता है, बट दिस ऑल इज एकेडमिक डिस्कशन. When it goes to the ground, and if an allegation comes up that this person is involved in audit, at least that triggering point has happened. Ladke, yes, I can fight it out for you, and I can say I can make a good cause you if you are a genuine person. But अपन उस समस्या में पड़े ही क्यों, उस समस्या से दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा. If you are finding it out that there is an entity which is scrupulous, or the persons whose conduct are scrupulous, my request is that should not involve much in that and keep yourself out, otherwise you are going to be in a problematic area. With this, scope of GST audit, I'm not discussing much, and I have still certain points to be discussed, but last 10 minutes left, so I would like to hand over back to the chairperson and will request to take the queries. I will share the PPT so the all those who are interested in can have a reading of it. Thank you, sir. Thank you. Yeah. If any participant having any query, kindly unmute yourself and ask the query to our speaker. I can have chat also. If there's a on the chat box, if I get something, I can take from there also. Yeah. Yes, anyone having any query? So I've got one on my chat box. I just read it. What it says: is there any time limit to block credit by the department? It is more than 1 year, but no notice issued in this matter. So that is from Tosif. The query is: so what my advice to you? See, as soon as you, first of all, if you have received any kind of notice of this nature under Rule 86, you first raise a preliminary objection and say him that kindly give me a reason that why you have blocked my credit. That should be go as a preliminary objection to him, so that for you can get the reasons why it has blocked. In all those cases, I find they have not reverted to you, and if the amount is substantial, definitely you can go and have a, I should say, writ filed and get the action quashed. Second, the problem which comes up that they have a time limit of 1 year till which they can block, and if they have not unblocked you by that time,
My request is write them a letter saying that you are grossly violating the provision of the law, and if they are not acting upon it, so their action of blocking can also be challenged under appellate rule. But the point is that will take some more time, so the writ will be a more efficacious remedy in this matter, to my understanding. Now one say कि सर अब उनको कैसे रोके, तो मैं कई बार मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड को समझाता हूँ कि कोई आपके थप्पड़ मार दे तो आप वापस थप्पड़ ही मार सकते हैं, वो थप्पड़ तो पड़ चुका. So the point is, yes, if they had carried out this exercise, I can't restrain them for not doing it. But yes, I can tell you the remedy where you can approach it. So that would be my answer to you. And then I have got a query from Mr. Nozershoff. What it is? Very nice presentation, sir. You have very good knowledge on the subject. Thanks for sharing valuable. Oh, thank you so much, sir. Next, Tosif has, can department issue someone under section 70 of the CGST Act and demand input supply and output supply from July 2017 to June 2020? Yes, someone may demand to nahi मांग सकते. Tosif, what I would suggest, they cannot ask you any kind of demand. Yes, they start making इंक्वायरी तो ये 5 साल तक की कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. अच्छा 5 भी नहीं, मैं बताऊं, अपन सब लोग बड़ा खुश होते हैं कि एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ गई, एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ गई. ये एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ाना मतलब अपना जो, मैं यूं बोलूंगा, डिपार्टमेंट को केसेस खोलने का टाइम पीरियड देना वो बढ़ाना है. क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर देखिए, अगर एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ी है तो उस एनुअल रिटर्न की बढ़ने की वजह से 17-18 की जो अपनी रिटर्नें थी वो 2-2 साल बाद फाइल हुई है, क्योंकि एक्सटेंड हो गई थी. तो डिपार्टमेंट के भी साल 5 साल बाद का टाइम आ गया फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. तो 7 साल के केसेस खोल सकते हैं अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं. ये एक चीज. दूसरा, मुझे जो क्वेश्चन समझ में आ रहा तो सिर्फ के वो ये समझ में आ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई फ्रॉम जुलाई 17 टू जून 2020. अमाउंट नहीं मांग सकते. 70 के अंदर वो आपसे क्वेश्चन रेज करते हैं. हाँ, थोड़ी थ्रेटनिंग टोन जरूर होती है जब वो आपको सेक्शन 70 संबंध प्रोसीडिंग्स में बुलाते हैं, बट यू हैव ऑल योर राइट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू डिफेंड योरसेल्फ एंड से सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी अमाउंट इन दिस मैटर, so that you can contest. Jayatana, I have signed financials of the shell company for financial year 18-19 and put remarks and auditor report regarding to this transaction. What are the steps we can do? So if you say you have put some remarks, first of all, I wanted to know what nature of remarks. If you have said no, these were bogus transactions, so my request is that please write a letter if you have written that clearly as your audit report observation to the respective jurisdictional officer as well as officer that during my investigation I have been able to find this, kindly take care of this transaction. Or if I tell you, there is one set of this example which appears to, कई बार ऐसा होता है कि आप जिनके ऑडिट कर रहे हो उनको अभी अभी सेक्शन 70 का सम्मन इशू हुआ है कि आपने जिससे माल खरीदा है उसने आपको इफेक्टिवली, आपने जिससे माल खरीदा है उसने कबूल लिया है कि वो सिर्फ बिल देने का काम करता है. तो क्या ऐसे क्लाइंट्स की ऑडिट करें कि नहीं करें, ये क्वेश्चन कई बार मेरे पास आता है फ्रॉम माय प्रोफेशनल ब्रदर्स. सो टू देम आई एडवाइस, उसकी ऑडिट करते वक्त आप इफेक्टिवली ये लिख लिए कि ये नोटिस के लिए हमने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ली, उसने ये बोला है कि हम इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे कंटेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ, और हमारा ये कहना है कि ये माल हमारे पास आया था और गुड्स भी आए थे और हमारी कोई गलती नहीं. Keep that MR as a part of your representation and disclose that transaction as a part of your, I should say, notes or comments which you can give as a auditor during filing your audit report. This will take you to carrying out effective proper exercise, but you cannot sit on the investigation of that person कि नहीं देखो आपको नोटिस आया तो उसकी ऑडिट ही नहीं होगी. ऑडिट तो is something you are right, but yes, a proper disclosure and a proper MR can serve your purpose. This is what my answer to Jay. We have 2-3 more minutes, so we can take some. If some other queries are also apart to my subject, I will be happy to entertain it. Subject it doesn't require me to also enter into some research arena, but yes, I can help it out. No issues. I've got some again more queries. अगर वो आईटीसी फेक इनवॉइसेस की रिवर्स कर देता है तो इनकम टैक्स ऑडिट में उसे कैसे जस्टिफाई करेगा वो एक्सपेंसेस. देखो यही तो चैलेंज है सर इस इन्वेस्टिगेशन का. एक तरफ आप रिवर्सल करेंगे तो इनकम टैक्स में कैसे कंफर्म करेंगे, तो उसका मैं जो वे आउट बताता हूँ मेरे हिसाब से, अगर आप लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मैं ये मानता हूँ रिवर्सल करने के 2 रीजन होते हैं.
एक ये कि यार मेरे को पढ़ना नहीं है तुम्हारी लड़ाई में, तुम तुम्हारे ये अमाउंट पकड़ो रिवर्सल, हो सकता है वो आदमी गड़बड़ हो, ठीक है, तो मैं तो ये पढ़ना नहीं चाहता. सो अंडर प्रोटेस्ट आई एम रिवर्सिंग माई अमाउंट without accepting any liability, just to buy peace of mind. I'm reversing it, and that should be your, I should say, letter which should go very effectively. So tomorrow if income tax puts up a question to you considering the investigation of the GST, you can say मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने ऐसे आदमी से माल खरीदा है जहां पे मेरा माल नहीं आया और सिर्फ इनवॉइस आया है. मैंने इफेक्टिवली ट्रांजेक्शन कैरी आउट करी थी और यही मेरा फैक्ट है. And just to buy peace of mind, I'm carrying out this transaction. That's how one should approach as a businessman in this type of reversals. Then if any registered person issuing sale invoice under value, then what will be the liability of GST auditor? यार अंडर वैल्यू करके बेच रहा है तो जीएसटी ऑडिटर की मुझे तो दूर दूर तक कोई लायबिलिटी नहीं समझ में आती. बिकॉज व्हेन यू से व्हाट डज अंडर वैल्यूएशन मीन टू मी, कि माल तो मार्बल के केसेस में मैंने बहुत देखा है, माल बिकता है 5 लाख का, बिल बनता है 2.5 लाख का, क्योंकि मार्बल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू ट्रांजेक्शन वाइज डिफर करती है. बिकॉज कोई एमआरपी बेस्ड तो काम होता नहीं है उसमें, पर ट्रांजेक्शन वाइज क्यों डिफर करती है मैं वो बता दूं. बिकॉज पत्थर की ग्रेविटी कितनी अच्छी है, उसकी घिसाई करेंगे तो क्लियरेंस कितना आएगा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है. वी हैव अ लॉट नंबर ऑफ मार्बल माइनिंग शेयर. सो वहां पे अंडर वैल्यूएशन का काम बहुत ज्यादा होता है. बट एज एन ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करना कि उस मार्बल की जो वैल्यू है वो प्रॉपर है कि नहीं है, दैट्स बियॉन्ड योर स्कोप. यू आर नॉट अ फॉरेंसिक ऑडिटर, यू आर नॉट बी अपॉइंटेड एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर. योर वर्क इज लिमिटेड टू क्या जीएसटी रेट सही लगी है कि नहीं लगी है, जितना पैसा खाते में आया था उतना पैसा का इनवॉइस बनाया कि नहीं बनाया हुआ है, एंड दैट्स ऑल योर पार्ट. यू आर नॉट अ फॉरेंसिक ऑडिटर जिसको बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड इमेजिनेशन जाके ये फाइंड आउट करेगा कि यार कहीं कैश में तो पैसा नहीं ले लिया. आई एम सॉरी फॉर दैट. मेरे को नहीं लगता है दैट्स योर पार्ट ऑफ योर वर्क. क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए, कहाँ गया, ऊपर चला गया. अगर एटीसी अनाउंस कर देता है तो इनकम टैक्स में yes, can the business person supply goods from transporters premises at this place, not additional place of business? How I would like to say this particular transaction, कई बार ये होता है कि ट्रांसपोर्टर की प्रेमाइसिस पे माल आ जाता है और फिर मेरा मन है कि मैं उसको वहीं से सेल कर दूं, मैं मेरी प्रेमाइसिस में लेके नहीं आऊं. तो ऐसे केसेस में व्हाट आई विल सजेस्ट, consignor address and place. When I say you have as a seller, you should mention your GST and your address, and the place of goods you can mention that. यहाँ पे चैलेंज आता है रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में जहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेस फ्रॉम वेयर आई एम सप्लाइंग द गुड्स. वहां पे आपके पास एक इम्यूनिटी में ये मानता हूँ, आप वंस अ वाइल अगर ये ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो अवेलेबल है. लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन को आप रेगुलरली कैरी आउट कर रहे हैं तो I will suggest to take that place as your warehouse and get an additional business done. So it should not create any problem for you in getting an interpretation of the section which talks about when to take a registration. So my request will be once a while transaction or an occasional transaction, yes, without registration I can give you, but still on invoice you should mention that from where the goods are being moved. However, if you are carrying out in a regular basis, my request will be take a registration of as a warehouse of that premises and then go ahead with that, just to avoid any kind of complexity in future. Can the business person supply goods for builder कैसे प्रूव कर सकता है उसने लेबर कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज रिसीव्ड हुई है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसे फेक इनवॉइसेस में पैदा पकड़ा गया है. देखो वो फेक इनवॉइसेस में पकड़ा गया है दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ, मैं अगर आपकी जगह होता या फिर मैं इस केस को आर्ग्यू कर रहा होता, मैं कहता साहब बिल्डिंग बनी है, ये तो जस्टिफाइड है. उसने क्या बोला वो मुझे पता नहीं, मैंने इस आदमी को पैसे दिए, टीडीएस काटा, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन में ये कॉमन मिलेगा कि पैसे भी बैंक अकाउंट में जाएंगे, टीडीएस भी कटा हुआ होगा. वो क्या कह रहा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बिल्डिंग बनी है. अच्छा, क्योंकि ये होता कैसे मैं बता दूं, वो करना ये पड़ता है कि खर्चे डालने के लिए कई बार ये लोग ऐसे लोगों से इनवॉइसेस लेते हैं जो कहते हैं कि हाँ लेबर कॉन्ट्रैक्ट का बिल मैं दे दूंगा, आप 2% कर देना और बैंक से पेमेंट कर देना. एक्चुअल में काम किसने किया होता है, वो दिहाड़ी मजदूरों ने किया हुआ होता है जो पकड़ के लाता हुआ काम करता है. नाउ द पॉइंट इज दिस, ये ट्रांजेक्शन के अंदर अगर कुछ गलती है तो you have to be a very proper defense to be made available in your case. अगर मैं आपकी जगह डिफेंस रहता है ऐसे केसेस में तो मैं डिपार्टमेंट से इतनी सी बात करता कि साहब उसने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे पता नहीं,
मेरी साइट पे आ जाइए, आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, वो बनती मटेरियल और लेबर से। ये लेबर लगी तभी काम हुआ। अब आप ये कहते हो कि उसने कुछ बोला, वो मुझे पता नहीं कैसे बोला, बट द फैक्ट इज दैट आई हैव अवेल्ड द सर्विसेज, बिकॉज फेक इनवॉइसेस में आदमी क्या बोलेगा कि मैंने इनवॉइसेस लिया, सर्विसेज ली नहीं। ऐसा तो है नहीं। डिपार्टमेंट ये तो नहीं कह सकता कि सर्विसेज नहीं आई है, क्योंकि सर्विस दिख रही है, बिल्डिंग बनी है तभी लगी है। सो देयर दिस वे द लिटिगेशन गोज ऑन क्रम्बिंग एंड टेल यू, अगर आपको इस मैटर के ऊपर, और बिकॉज ये मेरा रिसर्च एरिया रहा है, यू गो एंड सी द एक्साइज जजमेंट। बहुत जगह आर्ग्यूमेंट होते हैं ऐसे, जहाँ पे कोर्ट्स को फाइनली क्या डिसाइड करना पड़ता है, यार एक स्टेटमेंट है जिसके लिए हम बार बार चिल्लाते हैं, आपने डरा धमका के लिया होगा, यही तो आर्गुमेंट लेंगे। फिर उसके बाद हम उस स्टेटमेंट को गलत कैसे प्रूव करने की बात करते हैं, वो प्रूव होता है ऐसे कि आप ये बोलते हैं कि साहब आप ग्राउंड पे जाके देखिए क्या हो रहा है। डिपार्टमेंट अगर ये कहता है ग्राउंड पे माल नहीं अवेलेबल है तो केस बनता है, लेकिन माल हमेशा अवेलेबल होता है फाइनली, क्योंकि ऐसी ट्रांजेक्शन की जो आप बात कर रहे हो वहां पे भी क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन तो हुआ ही है। तो डिपार्टमेंट का ये केस बनाना कि सिर्फ इनवॉइस गया है, सर्विसेज कुछ नहीं है, गलत होता है, बिकॉज there is actual groundwork and that will create a defense for you। और कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पे कभी भी ये चीजें आई शुड से आपके फेवर में अलाउड नहीं होती, बट आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के आगे प्रॉपर ग्राउंडवर्क क्रिएट करना पड़ता है, सो दैट व्हेन टुमारो द मैटर गोस इन अपीलेट forums, you should have a strong case to argue there। So that's how my advice will go on this। Yeah, thank you so much, CA Apeksha, I guess, what's the name? Apeksha Gupta, yeah, thank you so much। I guess, Arun, we have completed our time, 7:03. Thank you so much for giving me all those queries. And from my presentation, my first slide, my email ID and number is available. I might not be taking my calls very regularly, being in court or in some forum. So my request that you can drop a mail if there's any still query to be inquired from me. Back to Arun, please. Thank you, sir. Sir, I must say it's a very wonderful session. I must thank you on behalf of all the participants for great insights on most admired topic of today's time, fake GST invoices and errors therein. Being CAs, a great responsibility lies on us to stand the tax practices in our country. We must avoid such practices which are deterrent to our nation as a whole. Thank you so much, sir, for sharing your valuable time. And I must thank all the participants for their patience listening. Thank you, everyone, and happy Ganesh Chaturthi to all. Thank Same you. to you. And I just just before departing, I just what just Arun said, I would request that be very cautious, very vigilant in carrying out your professional duties. Second, all what I have discussed is only and only for academic interest and knowledge, not to be quoted unquoted in any kind of forums. Yeah, that's my Right. experience and expertise I have shared with you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Okay, thank you.